14 तारीख से हमने इसकी शुरुआत की थी और आज 18 तारीख को हम इसके समापन की बेला पे हैं। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा साथ जो है सभी प्रतिभागियों के साथ हमारा रहा, हमारे विशेषज्ञों के साथ रहा। हम आप सबके आभारी हैं, आप सबका स्वागत भी करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय कुलपति जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया, मैं सर आपका स्वागत करता हूँ इस एफडीपी में। आपके सहयोग, आपके मार्गदर्शन, आपके गाइडेंस में बहुत अच्छे तरीके से हमने इस प्रोग्राम को किया। इस प्रोग्राम को करने का मौका हमें एआईसीटी ने दिया। एआईसीटी के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सीएस वर्मा हमारे साथ हैं। वर्मा सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका अभिनंदन करता हूं यहाँ पे। आज हमारे साथ में एक बहुत ही युवा फिल्मकार जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत चर्चा बटोरी है, श्री कामाख्या नारायण सिंह जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने भोर जैसी बहुत खूबसूरत फिल्म डायरेक्ट की है। सर, हम आपका स्वागत करते हैं अपने विश्वविद्यालय में, इस एफडीपी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ में हमारे विश्वविद्यालय के जो एआईसीटी एक्टिविटीज़ के डायरेक्टर हैं सीपी अग्रवाल सर, वो भी उपलब्ध हैं। सर, आपको मौजूद हैं, आपका भी सर स्वागत है। न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशिकला जी हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों का, हमारे विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों का, हमारे स्टूडेंट्स का, स्कॉलर्स का, पार्टिसिपेंट्स का, सबका हम बहुत बहुत स्वागत इस एफडीपी में करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि सिनेमैटिक कम्युनिकेशन पर ये एफडीपी हम अटल एआईसीटी के सहयोग से कर रहे थे और सभी टेक्निकल सेशंस पूरे हो जाने के बाद आज इसका ये लास्ट समापन सत्र है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे इस कार्यक्रम की संयोजिका जो हैं, हमारी को कोऑर्डिनेटर हैं श्रीमती रीता सोनी जी, उनसे कहूँगा संक्षिप्त में एक प्रतिवेदन जो है इसका यहाँ पर रखें हमारे इस एफडीपी का। श्रीमती रीता सोनी जी। Sir, a very good afternoon to all. I hereby present a 5-day report on faculty developed program on cinematic communication. Makhalal Chaturvedi, National University of Journalism and Communication, Bhopal, in association with AICT Training and Learning Academy, ATAL, had organized a 5-day faculty development program from 14 to 18 June 2021. The program was coordinated, designed, and executed by Department of Advertising and Public Relations. The program began with an inaugural session on 14th June at 9:30 a.m. It was inaugurated and by a welcome note by Dr. Pavit Srivastav, head of the Department, Advertising and Public Relations, followed by an address note by Honorable Vice Chancellor, Professor K.G. Suresh. The guest of honor for this session was a noted film director, Rahul Ravel. It was an interactive session where the participant interacted with the renowned film director Rahul Ravel. The second session was by the subject expert, Mr. Alok Chatterjee, a director of MP School of Drama. Mr. Alok addressed the participant on the topic New Genres of Visual Communication. The third session was addressed by Professor Rajiv Goyal, Professor of Jagran Lake City University, Bhopal. He acknowledged the participants on the topic Khadigram Shift of Indian Cinemas. Day 2, Session 4. This session was supervised by the subject expert, Dr. Yashad Manjul, Assistant Professor of Department of Film and Theatre, Mahatma Gandhi Antarashtriya Vishwavidyalaya, Varda. He discussed on the topic Film Diagnosis. Session 5 was on Art of Direction by subject expert, Mr. Aditya Seth, a filmmaker and an academician. Session 6 was an interactive session by a film director and screenplay writer, Mr. Wim Lane. It was a hand-on session on story writing. Day 3, Session 7, was on the session of film appreciation by Mr. Uppal Dutt, a filmmaker and National Award winner for film critics. Session 8 was by Dr. Amitabh Srivastav, Professor and Director, School of Media and Communication, Manipal University, Jaipur. He discussed on the topic Contemporary Visual Art and Writing. Section 8 was on Dynamic Visual Language by Mr. Suresh Dikshit, an ex-cinematographer, NITTR, Bhopal. Day 4, Session 10, this was by the subject expert, Mr. P.K. Nigam, a senior editor at NITTR, Bhopal. He discussed on the topic Evolving Trends of Editing. Session 11 was on the subject Instructional and Educational Film by Dr. Chandan Gupta, Director, EMRC, Indore. Session 12, the subject expert of this session was Mr. Animesh Sahi, an on-air promotion, head of Z Channel. This was a technical session on multimedia tools of editing. Day 5, Session 13 was by
Dr. Meena Agrawal, Assistant Professor, NAG Center, Bennett, Bhopal. It was a session on empowering energy through 7 chakras. The session 14 was an online exam and feedback form by the participant of the FDP program, and which is now then being followed by a valedictory session. I hereby conclude my report. Over to you, Pavit sir. Thank you, Anita मैम. आपने पूरे 14 सेशन जो है बहुत खूबसूरती के साथ संपन्न किए और देश के जाने माने जो है फिल्म विशेषज्ञ हमारे साथ में थे. और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर के सुरेश सर को से आग्रह करता हूं. सर शुरू करें उसके पहले मैं आप सबको बताला कि आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सर से सभी लोग परिचित हैं, फिर भी बताना चाहता हूं कि सर देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट सर रहे हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक सर रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों से पिछले कुछ समय से हमारे विश्वविद्यालय में सर कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. जब से हमारे विश्वविद्यालय में सर का आगमन हुआ है हम लोग बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत एक्टिविटीज़ लगातार कर रहे हैं और आज का दिन सर का बहुत व्यस्तता भरा रहा. लगातार 4 प्रोग्राम बैक टू बैक सर ने भी कंप्लीट किए और मुझे बताया कि मैं बस अपना उद्बोधन देके तुरंत निकलूंगा, मुझे विश्वविद्यालय का भी एक प्रोग्राम 4 बजे और अटेंड करना है, उसके बाद 3 सर के प्रोग्राम और हैं. तो सर इतनी व्यस्तता के बीच में आप हमारे साथ जुड़े, हम लोगों का मार्गदर्शन किया, आप गाइडेंस से हम बहुत अच्छा कर पाए. हम आपके आभारी हूँ. आपको उद्बोधन के लिए सर आमंत्रित करते हैं. आदरणीय कुलपति जी. आदरणीय कुलपति जी. धन्यवाद पवित्र जी. और मैं सभी से भी अनुरोध करूंगा, हमारे टेक्निकल टीम ने इसको लाइव स्ट्रीम किया है तो सब अपने फेसबुक में जरूर ये कार्यक्रम शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कामाख्या जी को सुन पाए. इसलिए मैं भी अपने फेसबुक पेज में शेयर कर रहा हूं. अभी अभी लाइव स्ट्रीम हुआ है तो इसलिए ये भी आवश्यक है साथ ही साथ. जी क्षमा चाहता हूं. My request to all the friends, participants to please, this is being live streamed on Facebook live. So please share it so that even those who could not participate in our sessions can enjoy the proceedings of this session. Thank you so much. Today's guest, young dynamic filmmaker, my young friend Kamakhya Narayan Singh ji. Our special guest today, Regional Officer of the All India Council for Technical Education, Dr. C.S. Verma. Our Registrar, Professor Pavitri Srivastav ji. Heads of department, faculty members, research scholars and teachers from across the country, and all other participants. A warm welcome to you. In fact, this is the time to say farewell, to say adieu, because today this is the valedictory program of the 5-day workshop on cinematic communication, which our university had organized in collaboration with the AICTE Atal Academy, Teaching and Learning Academy. और मुझे ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि मैं इसके अपने कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद 14 तारीख को जो लॉन्च हुआ था AICTE के पटल पे, जहां 27 FDPs were simultaneously launched in the presence of senior most AICTE officials, in which over 5,500 participants are participating. This year, we have got 2 programs. One, which is being organized by the Advertising and Public Relations Department, and another will soon be organized by the Department of Computer Sciences and Applications. Professor C.P. Agarwal, who is looking after the AICTE programs, is also with us today. हमारे अपने कार्यक्रम में लगभग 200
200 participants are participating. They are all teachers and research scholars from different universities from across the country. They all have a basic understanding of cinema. Some have expertise on that. Some have interest in that. They have all come together to understand cinematic communication. And these 5 days have been really brainstorming. देश के सबसे विख्यात जो मीडिया शिक्षक हैं, सिनेमा शिक्षक हैं, सिनेमा के प्रैक्टिशनर्स हैं, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो रखते हैं, they all came together. And as our faculty member Mr. Avasia was saying, that this is a unique program, a rare blend where both the practitioners and academicians have come together to talk about cinematic communication. और आज हमारे बीच में अगर हमने शुरुआती कार्यक्रम में राहुल रवेल साहब जैसे एक वेटरन को लेकर आए, जिन्होंने सिनेमा को एक एंटरटेनमेंट मीडियम के रूप में किस तरीके से कई टॉप स्टार्स को उन्होंने लॉन्च किया, कमर्शियल फिल्म्स में एक बहुत बड़ा नाम है और कमर्शियल के साथ साथ किस तरीके से कुछ सामाजिक संदेश भी दिए जा सकते हैं, उसके एक प्रतीक हैं रावेल साहब। और दूसरी तरफ ये जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, who are very bold, who can take on subjects which you would never expect, say about few years back, और वो आर्ट स्ट्रीम में आ जाते हैं, आर्ट कमर्शियल, बट टुडे दे आर ऑल मेन स्ट्रीम। और मेन स्ट्रीम में कमर्शियली वायबल बनाते हुए सोशल इश्यूज को लेकर सामने आ सकते हैं। ऐसे जो युवा पीढ़ी के जो फिल्मकार आज उभर कर आए हैं, उनके एक प्रतिनिधि के रूप में आज हम कामाख्या जी को देखते हैं। When his film Bhor was awarded, I had the privilege to be on the jury. And it was a unanimous decision. Because Bhor ने स्वच्छ भारत, टॉयलेट फॉर ऑल, उस सबको एक उसके सामने जो चुनौतियां हैं उसको लेकर उन्होंने कोई लव स्टोरी नहीं रिवॉल्व किया उसके इर्द गिर्द। एक सोसाइटल चैलेंज ऑफ हैविंग टॉयलेट्स, ऑफ द अर्बन रूरल डिवाइड, वहां जो संघर्ष है, जो माइग्रेशन है, इन सब विषयों को उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। And not only this, today I believe that he is going to speak for about 40-45 minutes, and we would all love to hear him. I would try to listen to him as much as possible. क्योंकि 4 o'clock को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 3 दिवसीय योग कार्यशाला हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से, तो उसमें भी मुझे जाना है। लेकिन ये आज मैं इनसे जरूर उम्मीद करूंगा कि सिर्फ भोर के बारे में ही नहीं, बल्कि आज हम आर्टिकल 370 इत्यादि विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन उस वक्त एक आर्टिकल जिस पर बहुत कम चर्चा होती थी, जिसके बारे में कम जानकारी थी, that is Article 35A, which was introduced through a presidential order in the Constitution rather than a parliamentary enactment. उसको किस तरीके से उस पर पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन किया, एक ऐसे समय में जब 370 के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं थी। उस विषय पर भी आप जरूर बताएंगे। और यही नहीं, ट्रैवलॉग्स। अभी एक दिन मेरे और कामाख्या जी के बीच में बात हो रही थी, उन्होंने मुझे ऐसे जगहों के बारे में मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में,
हम लोगों के भोपाल से कुछ ही दूर में जो होशंगाबाद है, वहां क्या है, वहां के जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहां अमेज़न का एक पूरा, अमेज़न से भी शायद खूबसूरत जगह के बारे में उन्होंने मुझे सूचना दी। अब यही होता है कि हम लोगों को ऐसी सूचनाएं मिलती है। रीवा के बारे में आपने बताया मुझे, जब रीवा परिसर के बारे में मैं चर्चा कर रहा था तब आपने रीवा के बारे में आपने बताया। आप एक, तो दो डायमेंशंस है इसमें। देयर आर टू डायमेंशंस व्हिच आई वांट टू से। वन, when I watch a film, I told you last time also when I was addressing this august audience that I was encouraged to visit Loktak Lake in Manipur because I watched Loktak Lairambi, which was a very moving Manipuri film. Apart from the fact that a movie should provoke you to think, the movie should give you a new perspective. And that is what Kamakhya's films also do. That they give you a new perspective to entire Swachh Bharat, toilets for all. Similarly, you should come to know about new things, new information, like his travelogues. He can do very much. It is easy to go to areas which have already been Goa, Kerala, destination shoots. Everybody can do it. But to go to hitherto unexplored areas, to bring to you uncharted territory, terrain, that is important. That is what filmmaking is all about. We watch the beautiful BBC documentaries. We watch Prasar Bharati, PSBT films only because it gives us a lot of new information. So film is not just for entertainment. Film has an educative role. Film has an information role. Film can inspire also. And that is what I believe today, apart from the technical expertise that is required, the quality of the script that is required, the lighting, the camera, the cinematography, so to say, the storyline, how socially relevant it is, how it is going to change mindsets, attitudes, mold public opinion. Apart from, of course, entertaining. So there are bold filmmakers who try to blend both entertainment and education. And Kamakhya is one such filmmaker. We are really privileged that in spite of his hectic schedule as a filmmaker, he has agreed to come and address us. And I can assure on behalf of the entire university that for us, mass communication is incomplete without cinema, without film. We have a course in our advertising and public relations department, but I'm happy to share with you that apart from जो फिल्म पत्रकारिता का कोर्स पाठ्यक्रम हम जो शुरू कर रहे हैं अपने खंडवा परिसर से, किशोर दास की जन्मभूमि से, हम बहुत ही जल्दी आने वाले दिनों में हमारा पूरा एक फिल्म का विभाग होगा जहां हम फिल्म मेकिंग, फिल्म प्रोडक्शन, इन विषयों को लेकर देश के एक, we will try to bring in new aspects of technology once we shift to our new campus where we have enough space also and the ambience also for inculcating a cinema culture. A huge auditorium also, one of the biggest in Bhopal. I'm sure that, we will be able to promote cinema culture also among our students
The state of Madhya Pradesh has immensely contributed to filmmaking. A lot of films are today being made in Madhya Pradesh, including feature films, Bollywood, what you call the Hindi films are being made here. So I'm sure that, you know, our university would be able to contribute in that direction also. We are going to give a lot of importance to film related studies, cinema studies also in the coming days. आने वाले दिनों में सिनेमा का अध्ययन को भी जनसंचार के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के नाते हम लोग लाएंगे अपने परिसरों में, और आगे भी आप सभी को जो भी इस कार्यशाला में आप लोगों ने भाग लिया है, आप लोगों से एक सतत संपर्क हम बनाए रखेंगे। आपको आगे भी इसी तरीके के क्रिएटिव इनोवेटिव प्रोग्राम्स आपके बीच में हम लाने का प्रयास करेंगे। AICTE के प्रतिनिधि भी यहाँ हैं उपस्थित। आई एम श्योर दैट यू नो वी विल बी एबल टू टुगेदर वर्क ऑन many programs which are beneficial for research scholars and teachers from across the country. Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism, we have already rolled out 7 new courses under the National Education Policy, and we are all set to bring about revolutionary changes in media education, to herald mega changes, and we require all your support and cooperation. I would like to thank each one of you, and on behalf of the university, अगर कोई कमी रह गई है तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूं, किसी प्रकार की कमी रह गई है. It could be if there is any communication gap or if they due to any other problem you faced. My apologies for the same. We would like to certainly look at the feedback forms that you fill up. We would like to see if there are any concrete suggestions to further improve. We will certainly incorporate them in future programs. I thank all the faculty members, resource persons who addressed these sessions across the 5 days, and the cooperation extended by our technical team, our teachers, and even participants who made it a roaring success. Thank you once again, and thank you to our guest, both Dr. C.S. Verma and our chief speaker for the day, Kamakhya Narayan Singh ji. We look forward to listening to you. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. आपने हम सबका मार्गदर्शन किया और हमारा उत्साहवर्धन किया. आपका मार्गदर्शन ही हम लोगों के हमारा पथ है, हम लोग उससे ही आगे बढ़ते हैं. अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर C.S. वर्मा जी, उनको आमंत्रित करता हूँ. C.S. वर्मा साहब रीजनल ऑफिसर हैं AICTE भोपाल यूनिट में, पूरा गुजरात मध्य प्रदेश देखते हैं. और मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही डायनामिक ऑफिसर हैं, बहुत बढ़िया सर की कार्यशैली है, और AICTE की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मध्य प्रदेश में और गुजरात में बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ C.S. वर्मा सर. सर मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपका आभारी हूँ कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और ये अटल FDP प्रोग्राम जो है हम लोग इसको बेहतर तरीके से कर पाए. मैं सर आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ. आदरणीय C.S. वर्मा. Thank you, sir. Good afternoon to all of you. हाँ, बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रहा है. हाँ, so respected Vice Chancellor KG Suresh sir, Makhanlal Chaturvedi, Makhanlal University, Mr. Kamakhya Narayan Singh, respected resource persons, जाने माने फिल्म विशेषज्ञ, respected participants, research scholars, ladies and gentlemen. I would like to say thanks to Makhanlal University, and also I would like to welcome all the participants in this valedictory function in Atal through Atal program. So Atal, actually this is a AICTE training and learning academy. Through this academy, AICTE funded institution to run particularly in emerging areas. So I am happy to know that
सिनेमेटोग्राफी इज ऑल्सो एमर्जिंग एरिया। तो हमारा जनरली जो एमर्जिंग एरियाज है वो हमारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, और दिस टाइम आवर AICT इंक्लूडेड फिल्म से रिलेटेड जो भी एरियाज है उसको भी एमर्जिंग एरिया में इंक्लूड किया है। तो मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो अटल के थ्रू जो अटल के थ्रू जो टॉपिक उनको दिया गया था उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करवाए। और मैं जैसे हमारे वाइस चांसलर महोदय से सुना, वाकई उनका स्पीच बहुत बढ़िया है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, और पर्टिकुलरली उनने सारे जो अटल प्रोग्राम करवा रहे हैं उनको उनका बहुत उत्साहवर्धन किया। उनके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। और ये अटल एक्चुअली AICT का जो प्रोग्राम है वो किसी कमिटी के थ्रू ही इसको स्टार्ट किया गया था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अटल एकेडमी हमारे CRO रीजन में वडोदरा ऑफिस में स्टार्ट होने वाला है। बिल्डिंग भी नई बनेगी, और इसके थ्रू आई होप हमारे जितने फैकल्टी मेंबर है, रिसर्च स्कॉलर है, पार्टिसिपेंट्स है, दे विल गेट बेनिफिट from that Atal Academy. Once again, I would like to say thanks to our coordinator, and I would like to say every participant. हमारे बीच में कामाख्या नारायण सिंह है जो इनके एक्सपर्ट हैं, और मुझे लगता है कि उनका सुन के हम सभी लाभान्वित होंगे और आप सभी एंजॉय करेंगे। Let us see, let us listen Mr. कामाख्या नारायण सिंह, who is the expert in this area. Thank you very much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर। आपका मार्गदर्शन यूं ही मिलता रहेगा तो हम लोग विश्वविद्यालय में और भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज AICT के माध्यम से करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। आज की आपकी बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, आप लगातार मीटिंग्स में थे, उसके बाद भी आपने हमें समय दिया, हम आपके आभारी हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके साथ हम ऐसे ही एसोसिएशन बना के रखेंगे। अब जो है आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कामाख्या नारायण सिंह को हम सब सुनने के लिए बेताब हैं। मैं उनको आमंत्रित करूं, उसके पहले डॉक्टर जया सुरजानी से अनुरोध करता हूं कि एक परिचय जो है यहाँ पर हम सबके बीच में रखें। डॉक्टर जया सुरजानी। नमस्कार, सभी को मेरी आवाज आ रही है? वेरी हार्टी वेलकम टू आवर चीफ गेस्ट टुडे, कामाख्या नारायण सिंह जी, who is one of the rising emerging film directors of our country. Is associated as creative director with global travel channel Travel XP, has directed over 220 travel documentaries and has traveled and shot in over 40 countries for extended periods of time in every corner of India. His notable works include debut feature film. His notable works include debut feature film Bhor, which was appreciated in the global film festival circuits and has traveled to 25 global festivals. He has won Best Director Award at Ottawa Film Festival 2019 and Best Film on Social Issues, Boston India Film Festival. His documentary, Justice Delayed But Delivered, was part of Indian Panorama in International Film Festival of India, Goa in 2020. We are privileged to have here today in the valedictory session of the 5-day virtual FDP of MCE in association with AICT Atal Academy initiative. Thank you, sir. Sir, I humbly request you to address this session. आपका सर माइक आप म्यूट है सर। स्वागत है आपका। Is fine now? Is it fine? Yeah. हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। आपके उद्बोधन के बाद हमने एक सेशन यहाँ पे सवाल जवाब का भी रखा है। जो भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लगभग 30-35 मिनट्स में आपकी स्पीच के बाद हम क्वेश्चन है सेशन भी करेंगे सर। ठीक है, आपका स्वागत है उद्बोधन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद सर। Respected KG Suresh sir, TV Verma sir, Pavitra Srivastava sir, it's always great to speak to academicians, and I'm thankful to KG Suresh sir. He calls me always. Last year also he had called me in Delhi University to speak to academicians. For a young filmmaker like me, it's I have just learned. I'm just learning from my work, and
To talk on my work, it's little difficult, but with KG Suresh sir, I have a special relation. When my debut film was in Indian Panorama, he was the jury member and he selected. So it's very difficult for me to tell him no. So that's why I've been, I'm here to speak. I feel when it comes to content, when it comes to filmmaking, for me, filmmaking is about the first step of any filmmaker, any filmmaking, either it be documentary or it be feature film, fiction film. First thing is selection of the content, the idea, the concept, what you select. It's very important for us. The idea needs to be something which will bring the eyeball, which is little away from the narrative and which has not been seen by the people. जो लोगों द्वारा देखा नहीं गया है, जो लोग सोच नहीं रहे हैं, जो पर्दे के पीछे की कहानी है, उसको लेकर आना, वो महत्वपूर्ण होता है और रोचक हो. तो when I was in college, I think so, when I was doing my mass communication, I studied social work in Delhi University, and when after my social work, I went to study film and television production in APJ Institute of Mass Communication. And as I'm talking to the academicians, so I am giving you the credits how it started with me. So the first thing was ki I think so in communication class, Sweta Singh ji, now she is with Indraprastha University. So she told me one thing ki and she was teaching news to us. Ki when a dog bites a man, then it's a news. When a man bites a dog, then it's a news. Okay, when a dog bites a man, it's not a news. It is same with fiction films also, or it's same with documentary filmmaking also. You have to bring out those topics, those ideas which is little away from and not seen, or not part of the narrative. जो लोगों को दिखाया नहीं जा रहा है, लोगों को समझाया नहीं जा रहा है. जब मुझे फिक्शन के बारे में समझाया गया तो मुझे ये कहा गया कि शोले देखो. शोले की कहानी क्या है? शोले की कहानी ये है कि एक आदमी है जिसके हाथ नहीं है, ठीक है, और उसका क्लाइमेक्स देखो, वो जो सबसे बलवान आदमी है उसको मारता है. तो मुझे लगा यस, ये बात तो सच्चाई है, ठीक है. तो शोले की जो कहानी थी ना, उस तरह की कहानी को अगर डॉक्यूमेंट्री में भी खोजो ना, कि जो आपके स्क्रीन पे अलग दिखे. So personally, when I was working on this, 2015 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, ठीक है, जो बेसिकली क्या हुआ, 2013 से हम चर्चा कर रहे थे उसके ऊपर, how to find ideas and concepts. So I used to work with TV channels and I have done lots of documentary for TV channels. This was an independent documentary which I was doing, and that was on KG Suresh sir mentioned about that Article 35A. So one day, one of my friend comes with a topic कि यार एक Article 35A है which is in Jammu Kashmir and which doesn't allow people like West Pakistani refugees who had come across the borders from Pakistan to during partition to this part of the country. The people who went to Punjab, who came to Delhi, they got all their rights. The people who went to Jammu Kashmir, they were deprived of their rights, like right to education, right to local jobs in local services, those things. I said, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, नहीं, बोला कि नहीं, there are provisions where you can't get jobs there. Then they said कि there are Dalit communities who do not get rights there. I said कि ये कैसे हो सकता है? तो क्योंकि उनको 51 में लेके गया था तो उनको राइट्स नहीं मिलते. मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक इशू है. तो मैंने पूछा कि वहां के लोग क्या कर रहे हैं, तो बोला नहीं, वहां के लोगों को समझ नहीं है कि क्यों इनको प्रॉब्लम हो रही है. तो मैंने पूछा कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उन लोगों ने बताया कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है. तो उन लोगों ने बोला यार वो 370 की वजह से प्रॉब्लम है. बोला यार ठीक है, तो 370 की वजह से नहीं, वो मेरे दोस्त ने जो फाइंडिंग्स करी थी उसके हिसाब से ये था कि 35A की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है. तो मैंने कहा कैसे हो सकता है कि 35A कोई वो. तो आर्टिकल 35 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो मेजर जो पब्लिकेशंस थी वहां 35A लिखा हुआ ही नहीं था, ठीक है, वो पीछे के अपेंडिक्स में लिखा हुआ था, ठीक है. तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे वो मानते ही नहीं थे कि ऐसा कोई आर्टिकल है. पर जिन लोगों ने खोजा था उसको, उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है.
मैंने कहा ये तो बड़ा अजब है, और बोला ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आए। मैंने कहा दिस इज अ टॉपिक, ठीक है, कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से एक आर्टिकल जिसको पार्लियामेंट में क्लियरेंस नहीं मिला, वैसी कोई आर्टिकल कैसे आ सकती है? तो आई वेंट टू अ लॉयर। मुझे अब क्या है, एज अ फिल्म मेकर आप जल्दी किसी चीज में विश्वास नहीं करते, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं गया एक वकील के पास, बहुत नामचीन वकील, बोला नहीं हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी देयर। फिर मेरे दोस्त से मैंने कहा ऐसा ऐसा बोल रहा है, बोला कि मैंने तो पब्लिशर के पास गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश करते हैं, और जब मैं उनके पास गया और उनको बताया, उन्होंने भी विश्वास नहीं किया कि कोई ऐसी आर्टिकल है, जो जिनकी सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो भी विश्वास नहीं कर रहे थे। दिस इज अनदर ये आई ओपनर। देन उसके बाद जब मैंने अपेंडिक्स में देखा और मैंने लोगों को पढ़ाया, तो बोला यस एक्सेप्टेड, बट दिस इज अ मिस्टेक। तो वी मेड अ डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। दैट वाज माय फर्स्ट इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री। आई हैड डन लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री फॉर एनजीओज, बट दिस वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री आई वाज वेंचरिंग इनटू, ठीक है, 2014 and 15 beginning. And honestly telling, till that time nobody had spoken about 35A in public year. We made the documentary, we had shown it to people, they were not accepting it. उनका कहना है यार नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड जम्मू कश्मीर को, मतलब जो फैक्ट्स मुझे मिले कि जम्मू कश्मीर का विलय अलग हुआ है, जब पढ़ाया जाता था मुझे, मतलब हमने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी कि जम्मू कश्मीर का विलय अलग हुआ, इसकी वजह से उसको स्पेशल स्टेटस मिलते हैं। Because of my travel documentary and because of my exposure, I used to travel to lots of royal families, meet royal families. जब उनके मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि नहीं, जितने रजवाड़े थे उनका जिस तरीके से विलय हुआ था, जम्मू कश्मीर का भी विलय वैसे ही हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल प्रोविजन है। सो कंट्री इज वन, और देश में कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों को अधिकार मिले। वहां के औरतों को 35A की वजह से अगर वो किसी और से शादी करती है तो उनके भी प्रॉपर्टी के अधिकार चले जाते हैं, उनके बच्चों को अधिकार नहीं मिलेंगे। मतलब यार सर सबसे बड़ा जेंडर का वो है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। और पूरे स्टेट में किसी को ये समझ नहीं आता था कि 35A की वजह से रूट कॉज है 370 की वजह से सबको लगता था, और 35A इजिली हटाया जा सकता है क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से था। So we made a documentary on this. So when we take our camera and go to shoot, because in documentary you do not have that much of fun कि आप पहले रेकी करके आओ, फिर जाओ, फिर करो, फिर वापस आओ। So we took our cameras and went there. We found nobody could speak on camera, and that's the truth. So people were not. So the lawyers could speak, but people who were doing research, but the people who were the victim of 35A, they could not understand. जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं, उनका कहना ये था कि हमको तो पीआरसी में कुछ फंसा के रखा हुआ है। जो दलित्स थे उनको भी करना था कि उनका पीआरसी का प्रॉब्लम है। रूट कॉज वाज 35A, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। वी मेड दैट डॉक्यूमेंट्री एंड 2 साल, क्योंकि किसी को समझ नहीं आया कि 35A क्या था, 2 साल वो डब्बे के अंदर बंद, ठीक है। नाउ इन 2017 आई थिंक सो, अगस्त के टाइम पे महबूबा मुफ्ती, by that time people understood and filed a appeal in Supreme Court of India and the High Court. तो उन्होंने कोई बयान दिया। अब क्या है, इस देश में पॉलिटिक्स के वजह से लोगों को चीजें समझ में आ, जब तक कोई बड़ा आदमी कुछ बोले ना तब तक समझ में नहीं आता है। उसके बाद लोगों को समझ में आया कि what we were talking about and what that documentary was. And उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग हुई 2 साल। When Jagmohan, we went to Jagmohan ji and explained him, and then he spoke to people, yes he is right and we can do this. And तब जाके उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया। So choosing your topic is more important. So उस दरमियान क्या हुआ, we met another girl, राधिका गिल। So वो डॉक्यूमेंट्री प्रेप डॉक्यूमेंट्री था हमारे लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उस समय एक लड़की से मिलते हैं जो कैमरे में बोल नहीं पाती है, ठीक है, पर वो उस डॉक्यूमेंट्री के दरमियान उसके बाद जो अपील करने में उसको इतना बोलना आ गया कि वो अलग अलग जगहों पे जाके बोलना शुरू कर दी। वी स्टार्टेड फॉलोइंग हर, एंड जब हमने उसको फॉलो किया तो वो जेवियर्स कॉलेज में बोलने आई, तो मैंने उसकी बाइट शूट करा मैंने, फिर वो जहां जाती थी मैं थोड़े बहुत बाइट शूट करता था। सो व्हेन आर्टिकल 370 वाज रिमूव्ड, 35A वाज आल्सो रिमूव्ड टुगेदर। तो उसके वजह से उसको सारे राइट्स मिल गए। अब जब राइट मिले तो सी बिकेम, बिकॉज उसके सारे वीडियोस पहले से सोशल मीडिया पे थे, तो सी वॉज टॉक्ड इन ऑक्सफोर्ड,
वो जय पांडा जी जब जाके वहां पे 370 को डिफेंड करने जाते हैं तो राधिका गिल के बारे में बात करते हैं। फिर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे न्यूज चैनल्स के टॉपिक को उठाती है। वी हैड पिक दैट टॉपिक 4 years बैक, और राधिका गिल के बारे में। देन वी डिड अ डॉक्यूमेंट्री लास्ट ईयर on her, ki how she got her rights. So as a filmmaker, it was journey of 4-5 years for us to do that documentary. And last year, that documentary went to Indian Panorama. Justice delayed but delivered, where that Dalit girl gets right because of 35A was abrogated. Now, my point was not ki 370 is there or 35A is there. Get 5-6 more articles in the of constitution, but my thing was ki anyone in this country should not be deprived of their basic human rights, and that is why I made that documentary, and that was successful. So choosing your topic is very important. How you choose your topic, how you choose your so basic narrative, how I see ki how I saw a story in it. I saw a story की जो बात किताब में, चाहे वो नूरानी साहब की किताब में, चाहे वो MJ अकबर साहब की किताबों में लिखा हुआ है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या चीजें हुई, पर ये बातें क्यों नहीं लिखी गई कि वहां पे बहुत सारे लोगों को उनके अधिकार कानूनन रूप से नहीं मिला। देखिए, आपके डिस्क्रिमिनेशन हर सोसाइटी में है, पर कानून तो इंश्योर करता है ना सबको अधिकार मिले। तो हमें ये इंश्योर करना था अपने डॉक्यूमेंट्री से कि उनको उनका अधिकार मिले, एंड दैट इज व्हाई आई फील माय डॉक्यूमेंट्री जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड, उससे पहले 35 वाले के बाद का जो डॉक्यूमेंट्री इज अ जर्नी, और वो जर्नी बहुत आपको सेटिस्फाई करता है। यू शुड पिक दोस काइंड ऑफ टॉपिक्स। सो टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फॉर मी एज अ फिल्म मेकर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आफ्टर द टॉपिक इट कम्स हाउ यू आर गोइंग टू टेल योर स्टोरी। So when I was in college and when I was learning filmmaking, मुझे एक बात समझ में आता है कि स्टोरी टेलिंग का जो फॉर्मेट है वो एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3 में ही डिवाइड किया जाता है। आप जो ग्रामर है वो कहता है कि पहले नायक को बताओ नायक कौन है, उसके बाद नायक की समस्या क्या है, और बाद में नायक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अच्छी चीज थी, पर फिर क्रिएटिविटी, ये तो वो तो है नहीं साइंस की और मैथमेटिक्स तो है नहीं कि 2 + 2 is 4. Sometimes 2 + 2 in cinema, I always tell my people, I always tell my cameraman कि 2 + 2 can be 6 also, and 2 + 10 2 can be 10 also in creativity. You do not know. So आप जो स्टोरी टेलिंग के तरीके को कैसे चेंज कर सकते हैं आप? मैं शोले को ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल समझता हूं कि शोले में जब आज मैं जब 2-4 दिन पहले मैंने केजीएफ देखा। केजीएफ सबने देखा होगा। तो केजीएफ में क्या होता है कि नायक स्टार्ट होता है, नायक कौन है, क्या है, और नायक अपना अचीव करता है। सिंपल स्टोरी, बट हाँ, टोल्ड इन अ ड्रामेटिक वे। स्क्रीन प्ले उसकी अच्छी है, डायलॉग खतरनाक है, पर कहानी करने का जो ग्रामर था वो एकदम करेक्ट और सटीक था। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। मैं जब शोले देखता हूं तो शोले में मुझे क्या दिखता है कि वहां अलग अलग शेड ऑफ कैरेक्टर्स हैं। अब कैरेक्टर्स कौन कौन है, मतलब कहानी की अलग अलग शेड है कि संजीव कुमार जो पुलिस ऑफिसर होता है और उसके परिवार, वो एक क्या नाम है, डकैत को गिरफ्तार करता है, वो जेल से भाग जाता है और उसको मार देता है। ठीक है, कहानी यहां भी खत्म हो सकती है। मतलब एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 अपने आप में यहां तक दिखाई देती है। ठीक है, और या तो उसका बदला ले ले, पर यहां उन्होंने एक्ट 1, एक्ट 2 एक साथ दिखा के एक्ट 3 बचा लिया कि कैसे वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उधर से फिर ये फिल्म के आधे तक ही दिखा देता है। उसके बाद क्या करता है रमेश सिप्पी साहब, क्या करते हैं कि वहां और 2 चोर को दिखाते हैं जिसको संजीव कुमार लेके आता है। मतलब एक्ट 1, एक्ट 2 संजीव कुमार का दिखाने के बाद साथ साथ में ये भी प्ले कर देते हैं। और सबसे बेस्ट चीज है कि उसके बाद जब एक्ट 1, एक्ट 2 सबके कोलैबोरेट करके एक 3 कल्मिनेशन एक साथ वो करते हैं। चाहे वो क्या नाम है, जय वीरू हो, चाहे वो संजीव कुमार हो। और कहानी का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो आदमी जिसके 2 हाथ नहीं है और वो डकैत को एट द एंड मारता है, बदला उस आदमी का। मुझे कहानी का जो सबसे बड़ा सूत्रधार दिखता है वो संजीव कुमार दिखता है। और जहां की फिल्म का हीरो असली में जय और वीरू है। ठीक है,
पर कहानी का, तो ग्रामर को आप पहले सीख लीजिए कि एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 क्या है, और उसके बाद ग्रामर को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है पहले आप ग्रामर सीख जाएं। उसके बाद तो ये चीज डॉक्यूमेंट्रीज में भी होती है। आप जब डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं तो आप, मेरी डॉक्यूमेंट्री कभी कभी बिगिनिंग से मैं शुरू कर सकता हूँ, उस लड़की को अधिकार मिल रहा है वहां से शुरू कर सकता हूँ और फिर उसके प्रॉब्लम्स को दिखा सकता हूँ, या उसके प्रॉब्लम्स पहले दिखाऊं फिर उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए दिखाऊं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे फील होता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, कि हर कहानी का पात्र कैसा दिखता है। मैं आज शोले के बारे में ज्यादा बताऊंगा क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने वापस शोले देखा है, इसलिए कि रमेश सिप्पी 1975 में एक फिल्म बनाते हैं, जिस फिल्म में जो हीरो है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, दोनों सिंपल लोग होते हैं, उनके चेहरे पे कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं किया गया, उनकी कहानी, उनकी स्क्रिप्ट में खेल किया गया है, उनके डायलॉग्स रखे गए हैं, उनके वो रखा गया, उनके एक्सप्रेशंस नहीं चेंज किए गए ताकि वो एक फ्लो करे स्टोरी में। संजीव कुमार जैसे एक्ट करते थे वैसे उसके आसपास कैरेक्टर बनाया, ठीक है, चाहे वो सुरमा भोपाली हो, चाहे वो क्या नाम है जेलर हो, चाहे वो कालिया हो, ऐसे कैरेक्टर्स बनाए, चाहे वो एके हंगल साहब का कैरेक्टर हो, ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जो स्टैंड आउट करता है, जो आपको एंटरटेन करता है, जो आपके आईबॉल को रखता है, और साथ साथ में आपका जो एक्टर है वो फ्लो कर रहा है, वो कहानी को लेके जा रहा है। एक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है। दूसरा वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है जब 1972 में गॉडफादर बनती है। गॉडफादर के बारे में कहा जाता है, उसके डायरेक्टर को कहा जाता है कि ही इज वन ऑफ द, मतलब न्यू हॉलीवुड सिनेमा बनाने में। अब वो क्या करते हैं कि मार्लन ब्रांडे, जो आपके सबसे बड़े जो मुख्य किरदार है गॉडफादर में, उसको ही कैरेक्टर दे देते हैं, और उसके आसपास के आगे कैरेक्टर यानी कि उसके विजुअल एक्सपीरियंस, उसके डायलॉग, उसको चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो आप जो भी ग्रामर देखते हैं कि आपका नायक कैसा हो या उसके आसपास का कैरेक्टराइजेशन क्या हो, सब कुछ डिपेंड करता है। कोई ग्रामर आपको सिखा नहीं सकता। ग्रामर है, ग्रामर तो ये कहता है कि हाँ कैरेक्टर बिल्डिंग हो, हर नायक का भी कैरेक्टर हो, उसका भी कैरेक्टर, पर किसके अप टोन हो, किसके डाउन टोन हो, और किसके स्क्रिप्ट के टोन्स हो, किसके स्क्रीन प्ले में टोन हो, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे आप अपने पात्र को पोर्ट्रे करते हैं और कितना एंटरटेनिंग वे में करते हैं। मैं एक बार तो ये बहुत जरूरी था, तो एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त अभिनव कश्यप के साथ कुछ लिख रहे थे। अभिनव कश्यप तब दबंग खत्म करके बस निकले ही थे, बेशरम कर लिया था, और बेशरम के बाद मेरे दोस्त के साथ फिल्म लिख रहे थे। तो मैंने कहा यार क्या यार दबंग जैसी, एंड आई हैड जस्ट बिकम अ फिल्म मेकर, सो आई जस्ट जॉइंड मीडिया एंड आई वाज डूइंग समथिंग, तो मुझे इतनी समझ थी नहीं। तो मैंने कहा यार क्या तुम ज्वाइन कर रहे हो यार, दबंग जैसी फिल्में बनाओगे क्या? तो दबंग जैसी फिल्में बनाओगे क्या? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार, तो बोला कि मैंने ना अभिनव से यही बात कही, क्योंकि वी ऑल कम फ्रॉम, आई स्टडीड सोशल वर्क, वी वर डूइंग डॉक्यूमेंट्री, तो वी ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, जहां की बचपन का बैकग्राउंड मेरा बहुत अलग रहा है, मैं बहुत कमर्शियल फिल्म देखता रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अभिनव से तुमने क्या बोला? तो बोला यार अभिनव को मैंने ये बात कहा कि यार बहुत हाईली कमर्शियल फिल्म था। मैंने कहा अच्छी बात, तो उसका कहना क्या था? बोला अभिनव ने मुझे एक बड़ी खतरनाक बात कही, उसने कहा कि सलमान खान की ना वो मार धाड़ के अलावा भी उस फिल्म के अंदर कुछ है, वो ये है कि जो उसकी माँ है वो विधवा होती है, और उसके जो दूसरे पिताजी हैं वो एक विधवा विवाह करते हैं, और उस घर में जब सलमान खान की जो अपब्रिंगिंग होती है, कैसे एक स्टेप सन का अपब्रिंगिंग होता है, उसकी कहानी। और उसमें एक रोचक तत्व है, वो उसमें बाप बेटे का संबंध है, उसमें भाई का संबंध है, सौतेले भाई का संबंध है, और उसमें माँ का संबंध है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? सो हाउ you narrate your story is more important, and it's very मतलब it gives you an idea how you can do it. उसके बाद देन जब आप कैरेक्टर बिल्ड कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपको पता है कि आपके कैरेक्टर, और मैंने भोर में भी यही काम को किया। जब मैं भोर बना रहा था तो मैंने भोर के अंदर भी इस चीज को रखा कि जो मेरा कैरेक्टर होगा, जो नायिका है फिल्म के अंदर, बुधनी नायिका है, मैं क्या एक बार वो दिखा सकता हूँ क्या ट्रेलर? जी सर। हेलो जी सर। Yes, sir. Yes. Sir, should we share that trailer? Yes, please, sir. Yes.
I शलभ सर शलभ सर कैन यू गो? हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। शहर में बहुत ही आराम है, हमको तो बहुत ही पहले आ जाना था। खेती में अब वो बात रहा नहीं। अब जब ठाकुर साहब के फसले नहीं होगा तो हम लोगों के गांव में मजदूरी का देंगे वो लोग? कैसे लग रहे हैं? निमन ना? केस झाड़ लो। हाँ, यहाँ लड़का लड़की आता है सब खाना खाने के लिए, तुमको उनको खाना देना। मेरा हाथ का दिया खा लेंगे। अरे काहे नहीं, यहाँ जात पात कोनो नहीं देखता है। एगो सुअर, 2 बकरी और लड़का के चांदी का चेन, ये सबका जुगाड़ हो चुका है। ब्याह में 40 लोग आएगा हमरा। ठाकुर साहब के यहाँ काम करते हैं, गांव में इज्जत है हमरा। चाचा आज भी दारू पी के गिर गया है। कैसे लग रहे हैं? हमको पढ़ाई करना है, ब्याह नहीं करना। अरे ब्याह के बाद तुम्हारा पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। हम खुला में रहते हैं, खुला में खाते हैं, फिर हम तो मुसर हैं, हम कैसे पाखाना बनाएंगे? आज तक इस गांव में मुखिया मुसर नहीं बना है। पहली बार मुसर टोली में जलवा दिखाने आ रही है रश्मि बाई। अब मुसर सभी बाईजी का नाच नचाएगा, यही दिन देखने के लिए बचे थे। बाबू से मुंह लड़ाएगी? कोर्ट से बहुत ऊपर चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हमारे नालंदा जिले की मुसहर लड़की बुधनी का नाम लिया है। आजादी मिली तो महात्मा गांधी ने खुले में शौच का सवाल उठाया और 70 बरस बाद वही सवाल फिर उठा है बुधनी के जरिए। लोग कहते हैं कपड़ा उतरने से इज्जत जाता है, हम लोग तो रोज यहाँ रेल लाइन पर बेइज्जत होते हैं। शौचालय का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं और गांव से आई लड़की दिल्ली में आकर भी करती है। एक नंबर बेटी है। हर अच्छे काम के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम। जब से ब्याह किए हमारा जिंदगी पखाने में ही फंस गई। अगेसर भैया, ये खाना तो बन गया, लेकिन जो खुला में पिछवाड़े में हवा लगता है ना, वो बात नहीं। दुनिया बदल रहा है, अब हमको भी ना बदलना होगा। So why I want to show you this, because देखिए मैंने अब कैरेक्टराइजेशन कैसे किया। फिल्म की जो नायिका है, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं। We can play this song little later sir, but ये रख लीजिए, ये प्ले करेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ, तो मेरा कहना ये था कि फिल्म के अंदर जब मैं कैरेक्टराइजेशन कर रहा था, तो फिल्म की नायिका लड़की है, बुधनी है। अगर आप लोग फिल्म देखिए तो उसके टॉयलेट के संघर्ष की कहानी है, पर उसके आसपास मैंने ऐसे पात्र रखे, तो कहानी तो यही है कि उसको टॉयलेट चाहिए था, टॉयलेट ले लेती और घर जाती, पर उसमें फिल्म बड़ा ड्राई बन जाता। तो उसको क्योंकि गांव में मुझे डालना था, क्योंकि गांव का ह्यूमर बहुत सालों से नहीं आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि गांव की जो कहानियां हैं, क्योंकि हम बचपन में बड़े हुए, मेरा वेकेशन, और देखिए वेकेशंस बच्चों का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा जो वेकेशन है वो आजकल जो है वो होता है कि लोगों को अलग अलग जगह पे डेस्टिनेशन जाना होता है। हमारे जमाने में हमारा वेकेशन हमारे गांव में होता था। आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन असम एंड वी आर ओरिजिनली फ्रॉम बिहार, सो आई यूज्ड टू ट्रैवल टू बिहार। सो इन एवरी वेकेशन वी यूज्ड टू फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, ठीक है। और गांव के लोग भी स्टाइलिस्ट हैं, उनके पास भी उनको अपने आप को अच्छा देखना, दिखाना, अच्छा पहनना, वो सब कुछ होता है। तो मुझे लगा कि पिछले कई सालों में हिंदी सिनेमा में मोस्टली, क्योंकि मलयालम सिनेमा, मणिपुरी सिनेमा और सिनेमा में गांव की कहानियां बन रही हैं, हिंदी सिनेमा में गांव की कहानी, और वो भी बिहार के बैकग्राउंड में या उत्तर प्रदेश के ऑथेंटिक गांव के बैकग्राउंड में कोई कहानी नहीं बनी। तो लड़की के ऊपर ये हो सकता है, सैनिटेशन के ऊपर हो सकता है, सैनिटेशन में संघर्ष कैसा है। उसके बाद वहां के जो छोटे छोटे चीजें, न्यूआंसेस हैं, शादी में, असली में शादी कैसा होता है, अगर मुसहर का शादी हुआ, और अभी वो हनी सिंह का गाना है कि वो दारू बटेगी, दारू खत्म हो जाएगा, पंजाबी वेडिंग है। यार गांव की वेडिंग की बात किसने की? वहां दारू पी के जब आदमी गिरता है वो कैसा हो सकता है, ठीक है। एंड दैट कैन क्रिएट ह्यूमर इन योर फिल्म। शोले
संजीव कुमार की कहानी है जो बदला लेता है 2 चोर के साथ, पर वहां सुरमा भोपाली भी स्टैंड आउट करता है, वहां क्या नाम है कालिया भी स्टैंड आउट करता है, वहां सब स्टैंड आउट करते हैं। वैसे कैरेक्टर्स बिल्ड करना चाहा मैंने गॉडफादर की तरह मेरे मुख्य किरदार को मैंने सब कुछ नहीं दिया, उसके डायलॉग्स, उसके स्टाइल्स चेंज नहीं करे। मैंने क्या किया, उसके आसपास जो सीरियस मेथड रखा उसके पास, और उसके आसपास ऐसे कैरेक्टर बिल्ड किए जो कैरेक्टर आपको हंसाए, आपको गुदगुदाए और आपको याद दिलाए कि आप अपने वैसे गांव में चीजें होती हैं। तो ये कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, अब सोचिए ये बात मैंने अपने ग्रैंडफादर से सुनी है कि यार अब तो खेत में कुछ होता ही नहीं है तो मैं कैसे लोगों को वो दूं, और इसकी वजह से माइग्रेशन होता है। इस फिल्म का एक गाना है, भैया ओ भैया मजदूर भैया। तो सबसे खतरनाक चीज है आज के डेट पे, मैं आई टेक इट वेरी लाइटली एंड प्लीज डोंट टेक इट पॉलिटिकली। देश ना आज के डेट पे, मतलब पिछले 1-2 साल में इतना डिवाइडेड है कि आधा लेफ्ट हो गया, आधा राइट हो गया। ना लेफ्ट वालों से पूछो लेफ्ट क्या है, राइट वालों से पूछो राइट क्या है, दोनों को पता नहीं है। पर लेफ्ट और राइट के बीच किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी को नहीं क्रिटिसाइज करना है, किसी को, और दोनों कोई गलतियां करे तो कोई कुछ। अगर मैं कामाख्या हूं तो मैं भी गलती कर सकता, मैं भगवान थोड़ी ना हूं, ठीक है। पर मैं कुछ अच्छे काम करूंगा तो मुझे अच्छा भी तो बोलो, और मैं गंदा करूं तो गंदा भी बोलो, गलत भी बोलो। ये होना चाहिए, एंड एज अ फिल्म मेकर भी होना चाहिए। पर हमारे सोसाइटी में क्या हुआ है, सो व्हेन आई मेड 35A एंड लेटर ऑन बीजेपी पिक्ड इट, सो पीपल थॉट कि यार 35A पे क्यों डॉक्यूमेंट्री बनाया। मैंने इनफैक्ट जब 35A पे डॉक्यूमेंट्री बनाया तो मेरे जो पुराने बॉस थे, मेरे टीचर जो थे, वो अभिनंदन सेखरी न्यूज लॉन्ड्री के मालिक, उनको ले जाके दिखाया एंड ही सेड यस इज अ राइट टॉपिक, ठीक है। फिर आज की डेट में मैं किसी को बोलूं कि मैंने 35A पे और 370 पे काम किया तो लोग बोलेंगे यार नहीं यार, यू हैव समथिंग टू डू विद बीजेपी। बोला यार ठीक है। फिर मैंने बनाया भोर। भोर में इट्स ऑन टॉयलेट, इट्स ऑन स्वच्छ भारत, बट इसमें कुछ सवाल हैं जो साइंटिफिक हैं। उसमें एक गाना है, भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तब बन्नी किसान, हमर बेटा भूखे सूते हो राम, ठीक है। When laborers were migrating, see, problems are not from today, it's since years. Laborers have been always misused. The migrants' problems are not of today, it's since years. We need to solve it. तो ये गाना पॉपुलर हुआ, तो दूसरे लोग बोलते यार तुम ऐसे गाना कैसे बनाते हो, ये तो लेफ्टिस्ट का गाना है। बोला यार लेफ्टिस्ट नहीं, ह्यूमन है, ठीक है। So as a filmmaker, I have to be human and I have to think away from politics. This is my way of thinking. This is my way of see, creativity doesn't give you any limit. You can go away from limit, think of and do whatever you want in your life. This is why, see, we never became engineers because engineers में ना सारे फॉर्मूला सेट होते हैं, या तो उसको रिसर्च करके एक नया फॉर्मूला बनाना था। हमें फॉर्मूला बनाना होता है, उसको तोड़ना होता है, उसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। बट वी हैव टू टेल स्टोरीज विच आर अनटोल्ड, unseen, never told, and we have to do that. Our job is that, and finding that is very important. I made a documentary recently, 12 एपिसोड का सीरीज है, मध्य प्रदेश के ऊपर है। Can we play that once? जी सर। Krizat! Krizat! Never had I ever glided on a magic carpet of lotuses. Or sailed on shore in a palace. Never had I ever lost myself in the world of bygone kings. Never had I ever seen what power looks like up close. Or tasted 100 different flavors on one street. Before I came to Madhya Pradesh. Never had we ever thought that a journey to the heart of India would be a journey to our own heart. So as a filmmaker, again,
either it be documentary filmmaker, either it be a feature filmmaker, or either it be you make TV shows. You need to find the right thing to do. When we were doing this documentary, my brief was ki let's do something on Madhya Pradesh because we are unable to travel outside India right now. So this year, let's do something in India. We have done Kerala, we have done Northeast. Northeast भी last कुछ years में बहुत explore हुआ है, चाहे वो मेघालय हो या नागालैंड हो. So we want to do something different. Honestly, when I started reading about Madhya Pradesh and when I started going through the pictures, unbelievable था. आप लोग भोपाल में हैं, भोपाल के पास, भोपाल में जो लेक है, राजा भोज वाली जो लेक है, वो इतना खूबसूरत दिखता है कि उसका कोई मतलब वो ही नहीं है. आप रीवा के पास एक जगह है परसीली, वो इतनी खूबसूरत दिखती है जिसका कोई मतलब तुलना नहीं है. मतलब it looks like Goa. It looks like better than Goa sometimes. So finding those places, those ideas, because ideas are the most important thing before you go on technicalities, before you go and narration, कि आप अपने स्क्रीन पे कैसे दिखाते हो. तो इस बार जो स्क्रीन पे ना मैंने सोचा कि कैसे दिखाएं, तो 2 लड़कियां ट्रैवल करती हैं. अब क्या सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया को कहा गया कि लड़कियां ट्रैवल नहीं कर सकती. हमने कहा कि आज मध्य प्रदेश में कैरावन्स चलते हैं, तो वो कैरावन का जो कल्चर है वो हम मध्य प्रदेश में दिखाते हैं. 2 लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं सो दैट इट्स अ सेफ टू ट्रैवल. और 12 एपिसोड, मतलब तवाब एक जगह है जहां से मड़ई एक जगह जाते हैं, जो मुझे कभी मैंने सुना ही नहीं था ये जगह. होशंगाबाद के बाद जो केजी सुरेश साहब कह रहे थे, तो वहां जब हम गए और वो जो बोट का जो ट्रिप है जो इसमें भी हमने डाला है इसके प्रोमो में, मतलब वो लगता है कि आप अमेज़न की जंगल में जा रहे हो और जो हमें बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया. तो एज अ फिल्म मेकर यू हैव टू फाइंड दिस काइंड ऑफ प्लेसेस. And on your screen, how you tell your story is important. Then it comes कि technicalities में आप क्या जाते हो. मतलब अगर जब आप lights कैसा यूज करने वाले हो, आप उनके look and feel क्या होने वाले हैं. अब लड़कियां, जब मैं अगर डॉक्यूमेंट्री, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और हम पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि ये कैसी जगह है, तो हनुमंतिया एक जगह है, लेक है और बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, तो वहां लड़कियां बिकिनी पहनेंगी और देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इन दैट. तो वहां पहन के जा सकती हैं. जब मैं भोर बनाता हूं तो ये जरूरी है कि क्या नाम है, जो गांव का मुसहर है उसको कैसे दिखाया गया है आज तक. पार के अलावा मैं जब भी गांव पे बनी हुई कोई भी फिल्म देखता हूं देश में, तो ये देखता हूं कि जो मेकअप है वो ओवरली डन होता है. जो कपड़े होते हैं वो आयरन ही होते हैं, वो नए ही होते हैं. उसको चाय में भिगो के उसको थोड़ा पुराना बनाने का कोशिश किया जाता है. आई वॉन्टेड कि वो सारी चीजें मैं नॉर्म्स ब्रेक करूं जब मैं भोर बनाऊं. मैंने अपने एक्टर्स को कहा कि आपको मेकअप नहीं करना है. आई कीप टेलिंग माय मेकअप आर्टिस्ट कि आपको पैसे इसलिए दिए गए कि आप धूल लगाए हो और 1 महीना आप सिर्फ गांव में रहेंगे और क्या नाम है, खेतों में काम करेंगे. जो वो झुलसा हुआ चेहरा दिखेगा उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. मतलब उससे अच्छा खूबसूरत फ्रेम पे कोई नहीं देख सकता. और उसका खेल था और उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, दोनों के चलने पे. तो बाप और बेटा जो है, जो फिल्म में बाप का किरदार निभाया है वो बेटे से कम उम्र का है असली में, असली लाइफ में. पर उसको इतना काम कराया खेतों में. और मैं नहीं चाहता था कि कोई 50 साल का आदमी वो उस कैरेक्टर को करे जो बाप का कैरेक्टर है भोर में. उसका रीजन ये है क्योंकि 32-33 साल का आदमी वहां पे, उनके पास 17-18 साल का लड़का होता है. तो मुसहर बुढ़ा भी होता है, तो मतलब बेटा जवान भी हो जाए तो उसके चेहरे पे थोड़ा चार्म रहता है. खेतों में झुलसा हुआ चेहरा हो, मतलब धूप में झुलसा हुआ चेहरा हो, पर आदमी जवान होता है. 30-35 साल में लड़का बड़ा हो जाता है क्योंकि 15-16 साल में उसकी शादी हो जाती है. तो ये चीज मुझे दिखाना था और इसके लिए जरूरी था कि मुझे मेकअप नहीं करना है. अब ये डिसाइड आपको करना है एज अ फिल्म मेकर. आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है और किस टाइम पे क्या आप चूज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो वो जो पॉइंट था, मैं लगान में जो लगान पे किताब लिखी है वो किताब पढ़ रहा था जिसमें आशुतोष गवारीकर ने कहा है कि मैं जो उस जमाने में कैसे बैट यूज करते थे, किस तरीके से गार्ड्स यूज करते थे, वो सारे चीज मैं रिसर्च कर रहा था.
पर मुझे लगा कि आशुतोष गवारीकर ने एक चीज कम कर दी कि जो कपड़ा पहनाया वो कपड़ा में, इट्स अ वंडरफुल फिल्म, लगान इज वंडरफुल फिल्म, पर वो जो कपड़ा पहनाया वो कपड़ा ऐसा था यार कि वो बड़ा आयरन धोया धुला हुआ कपड़ा दिखता था मुझे जो आमिर खान का कैरेक्टर उसमें कभी नहीं लगा कि वो पुराना कपड़ा पहना है। मैं चाहता था मेरी फिल्म, और जहां की 3 साल वहां पे बारिश नहीं आई है, तो मैंने क्या किया कि मैंने ना गांव में गया, जो खेत में काम करते थे उनके कपड़े उठाए और उनके कपड़े रख लिए और उनको नए कपड़े दिए। सो हैप्पीनेस ऑल्सो कि उनको नए कपड़े मिल गए, खुश हो गए वो। गांव में पहले 4-5 दिन तो क्योंकि वो जालू टोना वाला खेल होता है तो इसलिए उन लोग मना कर दिए, पर उसके बाद उन लोग एक्सेप्ट किए, और क्योंकि उनको कपड़ा मिल रहा था, वी बिकेम फ्रेंड्स बिकॉज वी वर स्टेइंग देयर फॉर अ मंथ बिफोर वी स्टार्टेड द शूट। तो उन लोगों ने मुझे वो कपड़े दे दिए, और वो कपड़े जो ऑथेंटिक लुक देता है भोर को, वो अनबिटेबल है हर चीज। तो वो एज अ फिल्म मेकर आपको डिसाइड करना है कि कैसे करना है। जब फिल्म के साउंड के बारे में बात हुई मेरे पास, तो क्योंकि आफ्टर फर्स्ट यू चूज अ टॉपिक, then you choose how you are going to tell your story, what are the characters, then how you build them character on the screen। क्योंकि एक तो कहानी के पात्र आपने जो कागज पे लिखा है, उसके बाद उसका मेकअप, उसका चाल ढाल, उसके बोल चाल, उसके डायलॉग, ये सारी चीजों पे काम करना होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्निकलिटीज, आप कौन से कैमरे से शूट कर रहे हो, कौन सा साउंड यूज कर रहे हो, साउंड सिंक साउंड कर रहे हो या डब साउंड कर रहे हो, ये सारी चीजें एज अ फिल्म मेकर। पर अभी भी कंटेंट इज द किंग, ये सारी चीज सेकेंडरी होती है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगेन एज अ फिल्म मेकर इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। आई फील आई हैव नेवर वर्कड विद संजय लीला भंसाली, पर संजय लीला भंसाली अपने फिल्म का जो लुक है और वो स्क्रिप्ट के साथ करते होंगे, क्योंकि उनकी फिल्म के लुक की वजह से वो जाने जाते हैं। या जब राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म बनाते हैं तो वो अपनी टेक्निकलिटीज पहले डिसाइड करते हैं, क्योंकि ही प्लेज विद क्लोज, ही प्लेज विद डार्क, तो ये सारी चीजें। पर मेरे जैसा फिल्म मेकर जो है, अभी तक जो फिल्में बना रहा हूं, जो स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, उसमें मेरे लिए मेरा इंपॉर्टेंट है कंटेंट, क्योंकि आई स्टडीड सोशल वर्क, सो आई वांट टू पुट दैट। मेरा जो प्यार है अभी भी सोशल मैसेजिंग पे थोड़ा रहता है, पर उसको एंटरटेनिंग वे में, उसके बाद उसका स्क्रीन प्ले, और उसके बाद सब कुछ, ठीक है। पर हाँ, I love my camera, I love the technology we shoot with। मतलब मैंने भोर, मेरी पहली फिल्म भी मैंने एरी एलेक्सा में बनाया, और मैं जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे ये कहा कि यार गांव की फिल्म कौन देखेगा कामाख्या, जब तक फेस्टिवल्स में नहीं गई थी, और तुमने कौन से कैमरे शूट किया? मैंने कहा एरी पे शूट किया मैंने। सो एरी इज द हायर एंड डिजिटल कैमरा राइट नाउ, वन ऑफ द बेस्ट कैमरास, मतलब जितनी बड़ी फिल्में होती हैं उसमें ही होती हैं। या तो उस पे शूट करें या तो आपको बाद में फिल्म करना होगा। फिल्म पे आजकल शूटिंग नहीं होती है, जो फिल्म रोल्स आते थे उस पे अब शूट नहीं होती है। एका दुका नोलान वगैरह शूट करते हैं, वरना जल्दी बॉलीवुड में तो कोई, इंडिया में, देश में कोई शूट नहीं कर रहा आजकल। तो उसने मुझे कहा कि यार तुमने इतना पैसा खर्चा कर दिया बेमतलब का, प्रोड्यूसर का पैसा खर्चा करवा दिया तुमने, अब क्या करोगे? तो मुझे भी डर लगा। बोला अरे 5D पे, गांव का फिल्म है, 5D पे शूट कर लेते, क्योंकि गांव की ऑडियंस नहीं है। मुझे ये भी कहा गया कि आप गांव की फिल्म मत बनाइए, इस कहानी को चेंज करके शहर का बना दीजिए, क्योंकि शहर की ऑडियंस है। मैंने कहा शहर में ऑडियंस होने का मतलब क्या होता है? मुझे जो कहना है, मुझे 20 साल से वो कहना है, ठीक है। 20 साल, हाँ 20 साल हो गया। मैं 18 साल का जब था तब, वो नाउ आई एम 37, ठीक है। 19 साल तक, 19 साल से, मतलब 15 साल उस समय से वो कहानी कहनी है, मतलब गांव की कहानी कहनी है मुझे, और तुम मुझे कह रहे हो शहर की कहानी कहनी है। सो एज अ फिल्म मेकर समटाइम, बुद्धदेव भट्टाचार्य नहीं है अभी, तो मैं उनके साथ जब बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा था उन्हें क्या किस तरह की, बोला मैं ना फिल्म अपने लिए बनाता हूँ। तो उसके बाद बहुत सारी फिल्म मेकर्स को मैंने सुना ये बात कहते हुए, पर पहली बार बुद्धदेव भट्टाचार्य ने मुझे ये बात कही थी कि मैं अपने लिए फिल्म बनाता हूँ, जो मुझे कहना है और जो मुझे लगता है लोगों को देखना चाहिए। उसके बाद ऑडियंस आती है, ऑडियंस देखे और वो जाए। तो मुझे लगता है मुझे ये कहानी कहनी है, बेचना नहीं, बिकना, घर में दिखाना, वो सब कुछ सेकेंडरी होगा, पर पहले मुझे ये करना होगा। मुझे अभी भी किसी एक OTT प्लेटफॉर्म पे बात हुई तो आपके जो फैक्टर है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको आप कैसे दिखाना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज इट। हेलो। Yes, sir. We are here. जी सर। Yes.
अब इतना खो गए हैं सर आपकी बात को सुनने में कि वो डर नहीं हुआ। चलिए तो अभी कुछ क्वेश्चन आंसर कर लें सर अपन। जी है ना, तो I was fine। जी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स पे भी कर सकते हैं। आप लोग में से जो भी कुछ कामाख्या जी से पूछना चाहें तो आप सब पूछ सकते हैं। शला कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी हैं, आप ले लेना वो क्वेश्चंस को, बाकी जो पार्टिसिपेंट डायरेक्ट पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है उज्जवल कुमार जी का, वो पूछ रहे हैं कि किसी फिल्म की ओरिजिनलिटी के लिए भाषा कितनी जरूरी है। जैसे भोर फिल्म बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है, वहाँ के लोग शायद हिंदी में बात नहीं करते, या लोग या तो मगही, मैथिली या भोजपुरी में बात करते हैं। तो जी बहुत जरूरी है उज्जवल। मैं परसों ना किसी से बात कर रहा था, परसों चंपू मेरे घर आया हुआ था क्योंकि पैर में थोड़ी दिक्कत है, तो ये इसी बात पे बात हो रही थी। मैं एज अ फिल्म मेकर सोचता हूँ, क्योंकि ये विजुअल मीडियम है जो दिख रहा है, ठीक है, तो पहले तो मुझे वो दिखाना है, उसके बाद उसके डायलॉग्स जो उसका सोच है वो आना चाहिए, उसके बाद वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां की लैंग्वेज, वहां की डायलेक्ट, वो सारी चीजें कवर होनी चाहिए। पर क्या होता है कि अब मैं बता रहा हूँ आपको, कास्टिंग में जाता हूँ पहले इसके लिए कि वी वांटेड टू कास्ट समवन फ्रॉम बिहार टू डू दिस रोल, बट आई डिड नॉट फाइंड राइट कैरेक्टर्स टू डू। कुछ ना कुछ, किसी के टाइमिंग के साथ प्रॉब्लम था, किसी को वो ऐसा एक्टिंग नहीं करना था, किसी को मुझे एक साथ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था तो मुझे वो 1 महीना शूट से पहले नहीं देना चाहता था, तो मुझे वो कैरेक्टर्स नहीं मिले बिहार में। वी हैड अ प्रोसेस ऑफ 6 months टू डू इट, ठीक है। देन आई वेंट टू, मुझे भी, क्योंकि मैं भी फिल्म स्कूल से पढ़ता हूँ, मुझे भी समझ जाती है कि लोकल डायलेक्ट रखना बहुत जरूरी था। फिर मुझे लगा हिंदी में ही बनाएंगे, तो हिंदी में, क्योंकि मुझे लार्जर ऑडियंस के लिए ये दिखाना था कि क्या है बिहार में, ठीक है, तो भाषा हिंदी थी। उसमें मैं थोड़ा बहुत डायलेक्ट टच रखना चाहता था, जो रखा भी है, पर बहुत ज्यादा नहीं रखा, क्योंकि सारे लोग जो आए थे वो आए थे, कुछ लोग उड़ीसा से थे, कुछ लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे, कुछ लोग दिल्ली से थे, कुछ लोग बंगाल से थे, कुछ लोग अंडमान निकोबार से थे। तो इसके वजह से वो उस भाषा को पकड़ने में वो या तो 1 साल लग जाता, जो बजट कॉन्स्टेंट भी होता है। पर अगर आपके पास बजट है, आपके पास टाइम है, आपके पास लग्जरी है, तो वो जरूर करिए। पर अगर नहीं भी हो तो, क्योंकि विजुअल मीडियम है, तो आपको सही अच्छे एक्टर्स चाहिए। सबसे पहले मैंने तो पहले कोशिश, मेरी जो कास्टिंग है वो दिलीप शंकर ने की है। दिलीप जी ने बहुत सारी मतलब इंटरनेशनल फिल्मों की कास्टिंग करते रहते हैं, तो मेरी जो बात हुई पहले उनसे कि पहले कोई एक्टर्स लेते हैं जो बिहार से हैं। जब वो नहीं हुआ तो हम गए कि लेट्स टेक सम बिहारीज एंड ट्रेन देम। तो उन्होंने दार्जिलिंग अनलिमिटेड किया है, अनकन्वेंशनल फंडामेंटलिस्ट किया है, उसमें भी कुछ अनकन्वेंशनल, मॉनसून वेडिंग में उन लोगों ने कुछ नहीं किया था। लाइफ ऑफ पाई ने एक अननोन लड़के को रखा था, बाद में उसको एक्टिंग कराई थी जो तो मुझे कहा कामाख्या 7 to 8 months चाहिए होंगे उसको ट्रेन करने के लिए, which by the time I had done, मतलब I had I think so spent 3 months on casting and then we realized this। तब मैंने कहा कि नहीं चलो ठीक है, नॉन एक्टर्स लेते हैं और डायलेक्ट पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि लोगों को फीलिंग दिखानी है। मैं बहुत अच्छी भोजपुरी बोलता हूँ पर मैं अच्छी एक्टिंग ना करूं तो फिर फायदा क्या ना, क्योंकि एट द एंड इट्स अ विजुअल मीडियम, वहां एक्टिंग जोरदार होना चाहिए, मेरे को लगता है लुक जोरदार होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं। भुवन भी लगान का भोजपुरी नहीं बोलता है, पर उसकी जो कहानी में जो थॉट प्रोसेस है वो आपको डिसॉल्व करता है। आई थिंक सो आई हैव एड्रेस्ड। जी कामाख्या सर नमस्कार सर, मैं अशरफ हूँ शारदा यूनिवर्सिटी से, मैं यहाँ मीडिया डिपार्टमेंट में हूँ। फिल्म आपकी भोर जो है मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बड़ी अच्छी फिल्म है। काफी दिनों के बाद मैंने एक, क्योंकि मैं जामिया एनसीआरसी से हूँ तो श्याम बेनेगल जी की मुझे याद आ गई कि वो कभी कभी आते थे, वो इस तरह जो है, और काफी अच्छी फिल्म एक जमाने के बाद मैंने देखा। बस एक मेरा छोटा सा सवाल है सर, ये फिल्म शूट कहाँ किया आपने? बस बिहार में। अच्छा, अरे किस जगह पे? मैं भी बिहार से, नवादा और नालंदा के बॉर्डर पे पेंगरी गांव में। ओके 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। इसका एक बजट मुझे बता पाएंगे सर कि ओवरऑल अगर इस टाइप की फिल्म अपन इनिशिएट करते हैं तो हमें कितने बजट की आवश्यकता पड़ सकती है? मैंने फिल्म 2.25 करोड़ रुपए में बनाई है और वो 2.5 करोड़ के आसपास चला गया है, ठीक है। बट आई मेड विद लॉट्स ऑफ लग्जरी। फिल्म आप उसे कम में भी बना सकते हैं, उससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, बट हाँ
2.25 करोड़ 2.5 करोड़, तो आपको सी अब लोकेशन चेंज करने भी, अब क्या है, जब मैं फिल्म बना जोश में आया, आई एम अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर यार, सो जोश में आया कि हाँ 1.5 करोड़ में फिल्म बना देंगे, ठीक है। तो आई वेंट टू माय सीनियर, मेरे कॉलेज सीनियर है आकाश, अमर कौशिक जिन्होंने स्त्री बनाया है, तो उनके पास गया, मतलब भैया 1.5 करोड़ में फिल्म बना देंगे। उस समय वो स्त्री बना रहे थे, 1.5 करोड़ में नहीं बन सकता था 1.5 करोड़ में। क्यों? तो क्योंकि तू पहले तो जो कैमरा सिंग साउंड कर रहा है, तो एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस इन दैट। जो गाना है वो भी लोकेशन पे रिकॉर्ड किया हमने, उसमें ही 10-12 लाख रुपया खर्चा कर दिया जो गाना है। उसके बाद तो ये सारी जो चीजें हैं, क्योंकि आई वांटेड टू मेक ऑन एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, उसके टेक्निकलिटीज, उसके सारी चीजें, उसकी कॉस्ट्यूम सब पे, तो उसको लेके खर्चा बहुत ज्यादा हुआ है। थैंक यू सर। सर एक सवाल है, विद्यासागर जी पूछ रहे हैं, नहीं उससे पहले विकास सिंह जी ने पूछा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोर प्लान while shooting indoor for a film? Indoor. जी. It's very important. Indoor shooting. See, it's again depends on the director, yaar. See, floor plan is very important. Without floor planning, it's the role of first AD. So it's very important. Without that, तो you cannot. So मतलब अब मैंने जो फ्लोर प्लानिंग करी थी, देखिए फ्लोर प्लानिंग जो है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, तो आपको प्लानिंग तो करके जानी होती है। आपकी जो शीट है वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या क्या शूट करने वाले हो, ठीक है। तो उसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो होता है ना, कि कभी कभी प्लान बदल भी जाती है, और आई एज अ डायरेक्टर कीप चेंजिंग माय प्लान। जो आज मैंने शूट किया उससे मुझे फील आता है कि नहीं यार, जो आज हो रहा है ना, उसका मैंने आफ्टर राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ ये भोर नेवर रेड द स्क्रिप्ट, ठीक है, मैं अपनी कहानी कभी पढ़ता नहीं दोबारा। जब डायलॉग्स कर रहा था तो रोज डायलॉग्स चेंज हो जाता था, और ये एक सबसे वो है कि उसके बाद जिन्होंने मेरे साथ लिखा, भास्कर यूज्ड टू बी ऑलवेज टुगेदर, आई रंजन एंड भास्कर रोड, तो भास्कर मेरे साथ बैठ के लिखा करता था। मुझे लिखने की बड़ी बुरी आदत है, मैं लिख नहीं पाता। अगर मुझे आज भी बोलोगे कहानी तो मैं लिख नहीं पाता, अभी भी कोई मेरे साथ होता है जो लिखता है, तो भास्कर ही बैठ के लिखता था। तो भास्कर को मैं रोज बोलूं तुमने डायलॉग बदल देना है, ठीक है, और वो परेशान हो गया कि अगली बार मेरे साथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी, बट ठीक है। सी, क्रिएटिविटी हैज नथिंग, ये फ्लोर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आस्क मी। सर एक क्वेश्चन है, विद्यासागर जी पूछ रहे हैं कि कैन यू सजेस्ट एनी producers for independent filmmakers like councils, associations that can pitch for? Yeah. See, go to the film festivals. Cannes has a film fund. I think the South Asia Singapore Film Festival has a film fund. अभी हो रही है वहाँ पे। उन लोग 25 डायरेक्टर्स को इंडिया से फ्लाई करके लेके जा रहे हैं अबू धाबी, और अबू धाबी में फिर उनको वो दे रहा है, स्पेस दे रहा है। तो अभी जुलाई तक है। Get in touch with me, I'll send you the links. फिर बाद में हांगकांग फिल्म फेस्टिवल है। सो दिस फिल्म फेस्टिवल दे हैव लॉट्स ऑफ फिल्म फंड्स। बुसान फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है, तो इन ऑल ऑफ देम हैव फिल्म फंड्स। इसी के साथ सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा सर, अभी आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? बाजार जाइए, फिल्म बाजार जाइए, बाजार जो इसी आप अभी सर किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसका क्या टॉपिक आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, बेसिक आइडिया? अभी एक स्क्रिप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ कश्मीर के ऊपर, पर दूसरा और एक टॉपिक पे तो प्रॉब्ली मैं उसको पहले बनाऊं। सो उस पे चल रही है चीजें। भाई बहन की कहानी है, मध्य प्रदेश में है, तो उसको करेंगे। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है, विद्यासागर जी का ही है। ये पूछ रहे हैं कि व्हाई इंडियन फिल्म्स फेल टू मेक एट ऑस्कर्स? व्हाई डू यू नीड ऑस्कर्स यार? यू हैव अ नेशनल अवार्ड, व्हाई डू यू नीड ऑस्कर्स? सर एक सवाल मेरा है। हेलो, they made good films or Ghatak made good films. I think we made good films, so that's it. I am from the school where I don't feel like the Oscar will decide we make good films or not. हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, एक सवाल मेरा ये था कि अगर हमारे पास कोई अच्छी आसपास की कहानी हो, तो वो कहानी लगता है कि फिल्म के लायक है, तो उसका क्या किया जाए, उसको कैसे आप तक पहुंचाया जाए, क्या किया जा सकता है? तक तो मैं अपनी कहानी पे ही ज्यादातर काम करता हूँ, ठीक है, पर आप उसको लेकर फिल्म बाजार जा सकते हैं, ठीक है, वहां पे हैं डायरेक्टर को, ठीक है, फेस्टिवल्स में जा सकते हैं कि आपकी ये कहानी आप फिल्म बनाना चाहते हैं,
पर दे आर जी मोर ओपन टू द एक्टर, डायरेक्टर, राइटर जी। आपको एक्टर के साथ कोलैबोरेट तो करना पड़ेगा पहले। अच्छा, तो उसके लिए कैसे लिंक कैसे मिलेगी, मतलब कहाँ से अपन फिल्म बाजार कहाँ जाना पड़ेगा? फिल्म बाजार, फिल्म फेस्टिवल्स में जाइए, बहुत सारे देश में आजकल फेस्टिवल हो रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर्स आते हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, दे विल टेक इट फ्रॉम देयर। अच्छा, ठीक। या आजकल तो सोशल मीडिया, आप ट्वीट करिए, वो करिए, यू हैव टू फॉलो, देयर इज नो शॉर्टकट। जी जी, उन तक थैंक यू। वो अपनी कहानी को लेके घरों तक जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। ठीक है सर, देयर इज नो शॉर्टकट। सर एक और क्वेश्चन डॉक्टर सैज जया सुरजानी जी पूछ रही हैं कि व्हाट इज योर मंत्रा टू परसुएड द फिल्म ऑडियंसेस? परसुएड द फिल्म ऑडियंस? जी, जिद्दी रहो, अपना जो काम करना है उसको करो और दिखाओ लोगों को, दैट्स इट, सिंपल। जो बनाना है वो बनाओ, दैट्स इट, सो सिंपल। आई जस्ट वांट टू मेक व्हाट आई वांटेड टू मेक, दैट्स इट। बिल्कुल सही सर। मेरा एक प्रश्न है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फिल्म मेकिंग के, जो बच्चे फिल्म पढ़ते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनको कैसे ग्रूम करें, कैसे उनको आइडियाज दें, मतलब कम बजट में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के जो अपने रिसोर्सेज हैं उसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, उन सब के बीच पे वो कैसे बच्चे निकल कर अपना काम करें, किस तरह से अपनी फिल्म बनाएं, किस तरह से अपनी फिल्म को प्रमोट करें, कुछ टिप्स आप दे सकते हैं? हम लोग तो अपने तरफ से प्रयास करते हैं, पर कुछ एज ए फिल्म मेकर आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया हो कि कम बजट, कम खर्च करके, कम रिसोर्सेज पे बच्चे कैसे अपनी क्रिएटिविटी को सबके सामने ला सकते हैं? सर अभी क्या है कि जितने ये आप तो छोड़ दीजिए, अभी तो क्या आप लोग के इंस्टीट्यूट के पास अपने कैमरास वगैरह सब कुछ होंगे, बट मैंने जो चीज देखी है कि मैंने इसलिए कहा कि स्टोरी टेलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, टॉपिक इज इम्पोर्टेंट देन हाउ यू टेल योर स्टोरी। इसके लिए कोई पैसा और किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि यू वांट व्हाट इज इन योर ब्रेन, आपने टॉपिक क्या चूज किया है। एक लड़की है रीमा दास, उसने विलेज रॉकस्टार बोल के एक फिल्म बनाई, 5 लाख रुपए की फिल्म है, 3-4 लाख रुपए में फिल्म बनाई है उसने। उसको पूरी दुनिया में कम से कम 50 से 60 फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया है। उसको 2018 के नेशनल अवार्ड मिले हैं। 5D कैमरा के ऊपर शूट किया गया है। दिस इज ऑलवेज कि हाउ यू वांट टू डू द फिल्म। आप पहले अपनी टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए कि आपको किसके पे कहानी बनानी है। उसके बाद तो आजकल तो हमारे जमाने में हमारे फोन नहीं थे सर, फोन पे आप शूट कर सकते हैं एंड दे गिव यू गुड रिजल्ट्स। मतलब वो एक चाइनीज फोन है क्या, कोई वन प्लस या 1+2 ऐसा कुछ है, कैमरास दे गिव यू गुड रिजल्ट्स, ठीक है। आईफोन हैज अ वेरी गुड रिजल्ट। इफ एन इंस्टीट्यूशन, देखिए मैं तो कहता हूं कि एक कमरे का भी इंस्टीट्यूट है और थोड़ा फीस लेके चला रहा है, आईफोन तो खरीद सकता है। आईफोन से वो बच्चा फिल्म बना सकता है, साउंड रिकॉर्ड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। At least they should start making documentaries, they should start making short films, and it's very easy। आस पास की कहानियों को पिक करें, छोटी छोटी कहानियों को पिक करें, कॉम्प्लेक्स स्टोरीज को ना पिक करें। आप जितना सिंपल स्टोरी, भोर was my first film, भोर is the film which I've never done fiction in my life। भोर is the first fiction, मतलब मैंने 2 मिनट की भी फिक्शन नहीं की अपने जिंदगी में। भोर पहली फिक्शन स्टोरी है मेरी, but it's so simple and I had an advantage of living in village, spending time in village, so I knew the culture of that place, area। वो छोटे छोटे न्यूएंसेस मैंने फिल्म में दिखाई है, सिंपल, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं। अब मैंने अपने गांव में देखा है, जब शहर से कोई कमा के आता था जो मतलब मजदूर वर्ग है, तो काला चश्मा पहनता था, ठीक है, लाल पैंट और पीला शर्ट होता था। So how you observe, that is more important। आप वो ऑब्जर्वेशन को अपने स्क्रीन पे ढाल दीजिए, सिंपल। थोड़ी फिल्में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि शॉट्स कैसे लेने हैं, और गलतियां जितनी करेंगे आप उतनी सीखेंगे आप। सर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा था, उसके लिए कैसे शुरुआत वो करेगा? मैंने बताया ना मैम कि पहले वो अपने टॉपिक को खोजे, अपने स्क्रिप्ट लिखे, और उसके बाद उसको अपने अगर उसको कैमरा नहीं मिल रहा है तो वो अपने फोन के कैमरे से शूट करे। फोन कैमरास गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स दिस डेज। साउंड
कर ले, रिकॉर्ड करे, पहले डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो इट्स सो इजी, उसको एडिट करे। सर टॉपिक भी डिसाइड किया हुआ है, टॉपिक भी डिसाइड किया गया है, टॉपिक भी डिसाइड है, टॉपिक डिसाइड किया है तो उसके पहले उसके स्क्रीन प्ले कागज पे लिख के वो उसका पहला चीज ना आंख बंद कर लेना चाहिए। मुझे मैं हमेशा ये करता हूं कि मुझे कुछ भी शूट करने से पहले मैं अपना एक बार आंख बंद करता हूँ, आंख बंद करके ये सोचता हूँ कि ये मैं कैसे देख रहा हूँ, मतलब मेरा पहला शॉट क्या होगा, नायक कैसे आएगा, वो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो या फिक्शन हो, उसकी पहली शॉट क्या होगी, सेकंड शॉट क्या होगा, थर्ड शॉट क्या होगा, फोर्थ शॉट क्या होगा, उसकी मैं पूरी अगर मैं क्लियर नहीं हूं, ऐसे तो यूजुअली आज अगर इफ आई एम मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री आई एम क्लियर ऑन माय ये हेड की व्हाट आई वांट टू डू, अगर आप और उसके बावजूद भी मैं कागज कलम निकाल के उसको लिख लेता हूं कि पहला शॉट ये होगा, पहले 2 मिनट में मैं क्या दिखाऊंगा, सेकंड 2 मिनट में क्या दिखाऊंगा, थर्ड 2 मिनट में क्या दिखाऊंगा, देन आई शूट दैट। उसके बाद आपको लगे कि आप ले आइए उसको एक बार मशीन पे लगा के देखिए कि अच्छा मैं ये लगा रहा था, ये लगा रहा था, ये लगा रहा था, ये ठीक है, बोला नहीं चलो इसको रिवर्स करता हूं, वो उसको फिर इसको रिवर्स करिए, पर पहले कागज कलम पे उतारिए कि आपको करना क्या क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। आपका क्या नाम है, पहले आप किसके, अगर मान लीजिए किसी की स्टोरी, आप मान लीजिए कल मुझे कोरोना, मेरे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी की कहानी बनानी है, तो वो कौन है ये तो बताना पड़ेगा। देखिए एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3 पे ही आना पड़ेगा, वो कौन है पहले ये बताना पड़ेगा, उसके प्रॉब्लम्स क्या है ये बताना पड़ेगा, और उसको सॉल्व कैसे करता है वो ये बताना पड़ेगा। एक्ट 1, एक्ट 2 के माध्यम से उसको कागज पे लिखिए कि उसको कैसे दिखाना चाहती है, सिंपल, और उसके बाद शूट करिए उसको। मैं भी सब प्यार से ये समझना पड़ेगा कि क्लोजअप, वाइड, सर आप म्यूट हो सर गए, ऑडियो नॉट सर, आप म्यूट हो गए। Oh, so sorry. Am I audible now? ओके जी ऑडिबल सर। तो कहाँ तक मैं बोला, मैं भूल गया। सर वो कागज पे पहले नोट करना पड़ेगा। हाँ, कागज पे नोट कर, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, दुनिया में कोई भी फिल्म बनानी है आपको, कोई भी कहानी कहना है, वो एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3 के माध्यम से ही कहना है। उसको तोड़ने के लिए बाद में आप सीखे, पर पहले ये सीख जाए कि एक्ट 1 में मुझे ये बताना है कि नायक कौन है, नायक क्या है, कहां से आया है, क्यों आया है, कौन है, कहां जाएगा, ये बता दिया। एक्ट 2 में मैं ये बताऊंगा कि नायक के पास समस्या क्या है, बिना किसी और, या विलन कौन है, बिना विलन चीज हो सकती है, परिस्थिति हो सकता है, आदमी हो सकता है, मोगेम्बो हो सकता है, कोरोना हो सकता है, भूखमरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको विलन क्रिएट करना है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना है, उस प्रॉब्लम को एक्ट 3 में क्लाइमेक्स करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किसी भी कहानी को आप अगर इस तरीके से नोट डाउन करें, ठीक है, उसके बाद आप देखें कि आपने अपनी कहानी बना ली, उसके बाद लिखिए कि मैं फर्स्ट शॉट कैसे दिखाऊंगा, नायक कौन दिखता है, नीचे का कैमरा लगाऊंगा क्या, ऊपर का कैमरा लगाऊंगा या साइड कैमरा लगाऊंगा, कैसा दिखेगा। मुझे कॉलेज में ये कहा गया नायक बड़ा दिखाना है तो लो एंगल लगाओ, ठीक है, पर मुझे दिखाना है कि नायक छोटा है, आज स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं ऊपर से लगाऊंगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मी व्हाट आई वांट टू शो, देन इट कम्स कि वो बोलता क्या है, वो अपनी प्रॉब्लम कौन है कैसे दिखाऊं मैं, वो कोई और बताए या नायक खुद बताए, या क्या नाम है, वॉइस ओवर में बताए या डायलॉग में चलते चलते बताए, ठीक है। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में शुरुआत में पूरे के पूरे उसको एस्टैब्लिश करने के लिए वॉइस ओवर यूज किया गया है, पीयूष मिश्रा ने वॉइस ओवर में बताया, या लगान में अमिताभ बच्चन ने बताया, तो क्या मैं अमिताभ बच्चन की तरह किसी आवाज में बताऊं कि क्या है इस कहानी का बैकग्राउंड, या खुद नायक आके चलते चलते कुछ बोल के चला जाए और भाग जाए, ठीक है, या मैं फॉरेस्ट गम की तरह बनाऊं जहां एक फूल आता है और वो बैठा हुआ अपनी बातें बता रहा है। सो ये डिपेंड करना, ये विजुअलाइज करना आपको कि कैसे आपको नायक को इंट्रोड्यूस करना है। जब नायक इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद जब उसका विलन से वो होता है या प्रॉब्लम से फेस ऑफ होता है, तब आपको दिखाना है कि प्रॉब्लम से कैसे फेस ऑफ होगा। तो दिस इज ऑल विजुअल मीडियम, हाउ यू विल डिसाइड। जी सर, थैंक यू सर। इंडिया में क्रेडिबल फिल्म फेस्टिवल्स के सर आप बता पाए, मुंबई और गोवा को रहते सर, गोवा और मुंबई के, हाँ जी, जो क्रेडिबल हो, जहाँ पे एक्चुअली में अगर आप टैलेंटेड फिल्म्स आती हैं सर। गोवा है, मामी है, हाँ जी सर, गोवा मुंबई का छोड़ के सर, और कहीं नेशनल लेवल पे और कहीं पे सर, केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्या नाम है,
वो धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, फिर बैंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इट्स वेरी गुड, देन चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, I'll send you a list if you want, then these are the big ones and the better ones. Okay. 5 bigger ones. Thank you. और कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी का? जी, कोई पूछ रहे हैं क्वेश्चन आप में से कोई और? शलभ, कोई और क्वेश्चन है आपके चैट बॉक्स में? नहीं सर, चैट बॉक्स में अब कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सर कुछ और आप स्पेसिफिकली टिप्स देना चाहें? अब इसमें से बहुत से लोग फिल्म मेकर भी हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं फिल्म वगैरह, कुछ खास आप फिर हम इसके बाद इसको खत्म करते हैं। जी सर, एक चीज मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे हम यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैक्सिमम सब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के टीचर्स और फिल्म स्टडीज, स्क्रिप्ट ये पढ़ाते हैं, डायरेक्शन भी पढ़ाते हैं। तो जैसे हम हमेशा बताते हैं कि स्क्रीन प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि आप उसे लिखें, उसका एक डेफिनेट फॉर्मेट होता है। तो क्या ये हर एक डायरेक्टर फॉलो करता है? क्या आपने उस टेक्निक को फॉलो करा है? नहीं, देखिए क्या होता है कि आप उसको समझे, सीखें, ठीक है, पर उसको सीखने के बाद उसको फॉलो करना है या नहीं उस कहानी के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। वो आप स्वतंत्र हैं उसको उसका निर्णय लेने के लिए। थैंक यू सर। कोई और? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कामाख्या जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो है। सर एक छोटा जी डॉक्टर साहब, एक छोटी सी जिज्ञासा पूछना चाहते थे। जी सर, जी अग्रवाल सर जी। इट्स अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड शेयरिंग सर। और आई जस्ट वांट टू नो कि हमारे अंदर जो कुछ कन्विक्शन होता है किसी चीज के प्रति, उसको क्रिएटिव। हेलो Agarwal sir, we are not able to hear you. Sir, please, can you repeat your question? Sir, mute हो गए। Am I connected now? Yes. Yes. Sir, हमारे we do have, every one of us has some conviction in us. That conviction sometimes remains hidden. I just want to know how to convert that conviction into a creative communication, into a film cinematographical view, or in writing. What is the knack of it? See, I would suggest that कलम और कागज उठाइए, लिखिए। जब आप लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या क्या आप लिख रहे हैं, ठीक है। एक बार आप लिख देंगे, उसके बाद आप उसको आंख बंद करके देख सकते हैं। दोनों तरीके हैं, या तो पहले आप आंख बंद करिए और उसको देखिए कि आप कैसे। देखिए, मुझे सिनेमा हमेशा क्या बोलते हैं उसको, कि इट्स इमेजिनरी रियलिटी। जो चीज मैं कर नहीं पाता हूं उसको मैं देखता हूं, ठीक है। जब मुझे सिनेमा देखने का मन था तो मुझे रोज लगता था कि मैं भाग जाऊं, ठीक है। इट्स अबाउट ड्रीम्स, ठीक है। भाग के स्कूल से भाग के देखूं, तो एक दिन स्कूल से भाग गया, ठीक है। उसके बाद आदत लग गई स्कूल से भागने की, ठीक है। फिर एक टी शर्ट छुपा के बाहर रखने की और उसको बाहर निकाल के पहन लेने की जब स्कूल से बाहर जंप करूं, ठीक है। तो इमेजिनरी रियलिटी है, ठीक है। तो आप जो आंख बंद करके देखते हैं उसको अगर स्क्रीन पे उतार सकें, सब कुछ है, ठीक है। आपको लगता है कि क्या नाम है, जो दबंग में सलमान खान मारता है, या क्या नाम है उसमें गदर में वो जो पाइप उठाता है, क्या वो असली हो सकता है? नहीं हो सकता है। पर वो जब आंख बंद करके आपको लगता है उस समय कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। सिनेमा इज ऑल अबाउट दैट। It's about bringing those things in reality in motion picture which you think and dream of. This is all about. See, there are different ways. I make reality based films where I get, so what has happened कि आपने imaginary reality में इतना दिखा दिया कि अमिताभ बच्चन कभी न खुशी कभी गम में जब चॉपर से उतरते बोलते हैं, These are two nice machines, get two of them, get more of them, ऐसा कुछ बोलता, डायलॉग बोलते हैं। मैं
मैं बहुत बड़ा हो गया, मतलब उम्र में बहुत बड़ा हो गया। हेलीकॉप्टर, भगवान की कृपा से हेलीकॉप्टर पे बहुत बार चढ़ने को मिलता है, क्योंकि मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, सो आई एम गेस्ट टू लॉट्स ऑफ टूरिज्म बोर्ड, गवर्नमेंट्स। पर यार मेरे दिमाग में अभी हेलीकॉप्टर ही, आई गेट एक्साइटेड व्हेन आई गो देयर। आज तक नहीं बोल सका नाइस मशीन, ठीक है। तो वो जो इमेजिनेशन का जो तबका है, वो इमेजिनेशन लेके आना। तो मुझे लगा मैं रियलिटी इमेजिन, तो हमको इमेजिनेशन से इतना दूर ले गया गया कि करण जौहर ने अपने पंजाबी वेडिंग्स में इतनी पंजाबी वेडिंग दिखा दी मुझे कि मेरे गांव की वेडिंग्स दिखी नहीं। तो मैं इस बार क्या किया कि मैं अपने गांव की वेडिंग दिखाने के लिए ये कर रहा हूं, ठीक है। वो जो मुसहर की जो कहानी है, जो अब इमेजिनेशन में गया है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तभी वो इम्पैक्ट दिखाई देता है आपकी मूवी में, जो एकदम टच करती है, जो आपका कन्विक्शन अंदर का है वो एकदम डिस्प्ले होता है। मुझे आपके साथ ये खासियत दिखाई देती है कि व्हाट इज इनसाइड योर कन्विक्शन, दैट इज कम्युनिकेटेड डायरेक्टली। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट गोल्डन सीक्रेट विद अस। थैंक यू वेरी मच। I come from Bihar. Originally, we are a Bihari. ये असम में मैं पला बड़ा हूँ। हमारे जूता चोरी करने का कोई वो नहीं है शादियों में, ठीक है। पर यार ये फिल्में बना फिल्मों में हमारी शादियों में जूता चोरी होने लग गया यार, ठीक है। तो वो ना इमेजिनेशन, so I wanted to get those imagination now, which is more real. So I make real films, but that has gone to imagination. Right. So I have one question. I have one more thing. I'll tell you one more thing, very interesting. So इंदौर के पास 2 जगह गया मैं भी। अभी मैं फरवरी और मार्च में आई वाज इन मध्य प्रदेश शूटिंग माय डॉक्यूमेंट्री। यार वहां ना, और मांडू, महेश्वर और लोटस गुलावट बोल के एक जगह है इंदौर के पास जी। तो लोटस गुलावट में ड्रोन, आजकल ड्रोन तो बहुत इजीली मिल जाता है, 1.5-2 लाख की ड्रोन होती है। मैं कह रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हुई है। सो फिल्म मेकिंग इज नॉट अ बिग थिंग। मतलब हमारे जमाने में, मैं जब डॉक्यूमेंट्री बनाने आया, यू हैव टाइम, आई कैन टॉक फॉर 10 मिनट्स प्लीज। सो मैं जब डॉक्यूमेंट्री बनाने आया, तो मुझे एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, जिनके डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बड़े नाम के, तो वो एक सेमिनार में बैठ के ये कहते कि सी आई मेक डॉक्यूमेंट्रीज बिकॉज आई एम प्रिविलेज्ड, बिकॉज आई हैव अ हाउस इन दादर, so which was made by my father, so I can make documentaries because my documentaries takes 5 years to make, ठीक है। So because it's an expensive game and you do not get that much of return from documentaries. I thought the same, but we were from middle class family, so I joined Abhinandan Sekhri as his assistant, and now he runs News Laundry. He used to have a small screen production house. He told me कि let's do travel documentaries for our living, and 1 documentaries we will do in a year for our satisfaction. I was happy. Now the things have changed. You have your iPhone, you have your phones. पहले ना कैमरा हायर करो, फिर एडिटर हायर करो। आज एक मशीन घर पे ही कंप्यूटर लगा हुआ है, उस पे एडिट करके लगा दो। स्टोरी टेलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। जब आपके पास संसाधन आएंगे तो आप टेक्नोलॉजी यूज करना ना, ठीक है। सो आई हैड 2.5 CR because for 10 years I made documentaries all along and made a name for myself. So आपको अपनी कहानी कहनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है 4 एक्टर्स, नए बडिंग एक्टर्स को लेके आइए, उनको बोलिए कि आप एक्टिंग करो मेरे स्क्रीन पे, दे विल एक्ट। आप अपने कैमरे से शूट करो, ठीक है। आप हो सकता है माइक्रो लेंस लगा के शूट नहीं कर पाओगे, आप हो सकता है एरी जैसा आप फील नहीं दे पाओगे, बट आपको देना होता है। तो क्या होता है कि मैं ना जाके, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं जाके वो लोटस गुलावट पे शूट कर रहा था, एंड अब हमारे पास कैमरा है, ये है, तो मेरा कैमरामैन हंस रहा है, यार ये क्या कर रहा है। वो जो नाव चलाने वाला आदमी है ना, नाव चलाने वाला आदमी, वो डायरेक्टर बना, ठीक है, क्योंकि उसकी बिजनेस है ये। सो ही मस्ट हैव लर्न फ्रॉम यूट्यूब। ये वो क्या करता है, लड़का लड़की वेडिंग फोटो करवाने आए, ठीक है, तो धक्का मारता है नाव को, और लड़की की जो साड़ी क्या पहनते हैं यार, गाउन पहनते हैं ना, वो गाउन ना बहुत लंबी है, तो वो गाउन के अंदर छुप जाता है, ठीक है, और नाव के अंदर छुप जाता है, और ड्रोन ऊपर है, और ड्रोन उड़ाने को बोलते हैं कि ऊपर लेके आ। सो एक टॉप शॉट है टाइटैनिक वाला। आई सी वाओ मैन, व्हाट मतलब यार वो नाव वाले की, ही इज अ फिल्ममेकर, ही इज अ डायरेक्टर, ठीक है। तो आपको आज के डेट पे कुछ करने के लिए ना, उसको क्योंकि उसको अर्निंग मिल रही है, ठीक है, वहां आसपास गया तो वो मेरे लिए, सी आई एम लिटिल डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फैमिली लाइफ, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो मैंने देखा कि वो, और मेरी शादी में सब हुआ नहीं था, तो वो क्या नाम है, वो लव वाला साइन के साथ वो साइकिल लगा हुआ है, उसमें शूट कर रहे हैं,
and they are enjoying. It's more filmy. ये कहाँ से आया? ये फिल्मों से आया। टेक्नोलॉजी इजी हुई, लोगों को फिल्मों में दिखाया गया कि लड़का लड़की गाने गाते हैं। मैं एक आदमी, और ये मध्य प्रदेश में हुआ, जबलपुर में मैं किसी के साथ बैठ के मजाक उड़ा रहा था, फिर वो दिखाया, भाई साहब मैंने भी शादी में ये शूट करी थी, और उसने दिखाया गाना था, प्रॉपर गाना, ठीक है। मैंने कहा कितने पैसे खर्च करे? बोले 1.25 लाख रुपए खर्च करे। इट्स गुड फॉर द लोकल बिजनेसमैन देयर, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। डू यू नो माय ड्रोन ऑपरेटर इज अ मैरिज फोटोग्राफर फ्रॉम ग्वालियर। जो आप ट्रैवल एक्सपी के ड्रोन फोटोग्राफी देखते हो, वो शादियों में पहले फोटोग्राफी करता था। We picked him up, we taught him, and we made him like that. So तो ये पैशन है। और अब ना मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। पहले क्या होता था कि आप ना फिल्म लेके आते थे, फिल्म में क्या करते थे, आप लाते थे, लोड करते थे, फिल्म शूट करते थे, फिर आप पहले से प्रैक्टिस करवाते थे कि डायलॉग गलत बोल दे तो फिर क्या दिक्कत। अब क्या है यार, डायलॉग गलत हुई, वो क्लिप चूज किया, डिलीट कर दिया, ठीक है, हार्ड डिस्क पे गए, वो डिलीट कर दिया, खत्म कहानी, ठीक है, फिर वही हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो। फिल्म में क्या, एक बार एक्सपोज कर दिया, अगर गलत हुआ तो फिर से पैसा लग जाएगा प्रोड्यूसर का। और फोन तो सबसे इजी है टू स्टार्ट विथ फोन। ऐसा तो नहीं है ना पापा, हमारे जमाने में, इफ यू रिमेंबर, यू गाइस रिमेंबर, जब कैमरा आता था तो रोल आता था जिसमें 36 फोटोग्राफ खींच सकते थे, 28 फोटोग्राफ, 34 होता था, 28 खींच सकते थे, और 130 रुपए का एक रोल आता था। उसके बाद उसको एक्सपोज कराना होता था, ठीक है, वो मिला के 400 रुपया का एक खर्चा था, ठीक है। 400 रुपए बहुत होते थे उस जमाने में। जब मुझे पॉकेट मनी पूरे मिला के 4000 रुपए मिलते थे, 4000 में अगर मैं एक महीने में एक रोल खत्म एक्सपोज कर दिया तो फिर उसका पैसे नहीं होते थे मेरे पास, क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, ठीक है, लॉन्ग बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट ये। तो आज तो वो जरूरी नहीं है एक बार फोन खरीदे, और मैंने उस जमाने में कैमरा खरीदा जो 50,000 रुपए का। अमेजिंग सर, थैंक यू सर। आई हैव अ क्वेश्चन। सर, आपने अभी बोला कि आप जो फिल्में बनाते हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक होती हैं, आपके प्लान्स रियलिस्टिक होते हैं, आपके प्लॉट्स रियलिस्टिक होते हैं, बट नहीं होते। okay, those imagination story you bring them to the real, all the things, it is realistic in your film and that is what is being appreciated nowadays. But sir, एक सेक्टर है जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करके, लाइक दे यूज वर्चुअल रियलिटीज, दे यूज इफेक्ट्स, दे यूज 2D एनिमेशंस, दे यूज 3D कैरेक्टर्स, और ऐसी भी फिल्म बन रही है जिसमें सारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एम्बेडेड है और ये भी अपने आप में मार्केट में अपना बूम बना रही है। मेरा सवाल ये है सर, क्या ये टेक्नोलॉजीज हमारी फिल्मों के एस्थेटिक को, उसके सेंस को इफेक्ट करती है, एंड डू यू सपोर्ट दीज टेक्नोलॉजीज टू बी इम्प्लीमेंटेड और एम्बेडेड इन फिल्म्स? Yes, definitely. See, storytelling in different ways, it's important. I grew up watching films of Mithun Chakrabarti. When I came to college, I understood there is someone called Ghatak and there is someone called Satyajit Ray and Mrinal Sen. So every way of art is important and it's needed, much needed. The way David Dhawan stories are more, it's good, yaar. It makes you smile. So it's everyone's storytelling is nice. Matlab, Bahubali is the greatest work of the VFX, and it gives you a story. Matlab, it takes you back in an era where those kind of things used to happen. Or it's, see, again, I'm on the same point. It's imaginary reality. Wherever your imagination goes, it takes you to another world. It takes you to another country. It takes you to another zone. It's all accepted. I have been working on virtual reality, so it's fine. See, I do quite a different work in my life. So on travel front, we are doing something on virtual reality also. We are doing something on 3D cameras also. So I work on all kind of segments. So that's not a problem. And it should be accepted. True, sir, true. So basically it should be human centric. किसी भी तरह से human centric होना चाहिए हमारी way of working, so that we have the audience with us and we are able to that is जो भी motivation है, यदि entertainment का है या information अपना work complete करना चाहिए। Very well, thank you so much sir. आप जब तक ना entertaining way से और किसी way से स्टोरी बोलने में सफल हो रहे हो, that is more important. Right. सर एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। एक मैं प्रमोद सिन्हा बोल रहा हूँ खंडवा से। कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को यदि कोई छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में शूट करना है तो उसके लिए भी एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 में उसको फॉर्म करना पड़ेगा, या फिर
उसकी कैसे स्क्रिप्टिंग करें, प्रॉब्लम तो देखिए एक बात याद रखिएगा, आपका खुद का भी जिंदगी ना एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3 में होगा, ठीक है? सबका लाइफ में कोई भी आदमी बिना एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3 के नहीं होता। मुझे लगता है आप अगर एक्ट 2 एक्ट 3 नहीं भी जानते ना, तब भी आप कह सकते हैं। कहानी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि ये आदमी कौन है, ठीक है? उसके बाद है ये आदमी कहाँ जा रहा है, ठीक है? और इस आदमी का अंत क्या होने वाला है, ठीक है? तो यही चीज है। चाहे वो आजकल मैं वो श्री प्रकाश शुक्ला पे कुछ पढ़ रहा था, वो ही वाज अ क्रिमिनल इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो श्री प्रकाश शुक्ला की बचपन तो बताओगे कौन है ये, या कितने क्राइम्स किए हैं, ठीक है? उसके बाद हो सकता है आप शुरू करोगे कितने क्राइम्स किए हैं, तो वो भी हो गया कौन है, ठीक है? या मैं ये शुरू करता हूँ कि ये बच्चा था जो गोरखपुर के इस इलाके में रहता था और उसने ये किया, ठीक है? या मैं ये शुरू करता हूँ कि मैं ना मारा जा रहा हूँ, मुझे वो मर गया है और वो मरने के बाद बोलता है, ठीक है, कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने इतने मारे। यानी कि आपने ये तो एस्टैब्लिश किया कि क्या कर रहा है ये, कौन है ये। मेरी एक डॉक्यूमेंट्री में एक लड़की कहती है कि मुझे आज बहुत खुशी है कि मुझे वो उन अधिकार मिल रहा है जो पिछले 5 साल से लड़ रही थी और मेरे परिवार के लोग 70 साल से लड़ रहे थे। यानी कि इस चीज को एस्टैब्लिश करता हूं मैं कि कोई एक ऐसा अधिकार है जिसको जो इसे नहीं मिला। फिर वो अगले लाइन में कहती है कि मुझे ये अधिकार वो है जिससे मैं अपनी नौकरी ना कर सकूं। मैं बीएसएफ के एग्जाम देने गई थी, मुझे नौकरी नहीं मिला, ठीक है, तक, ठीक है। क्या इस देश में मैं दलित हूं और क्या मुझे ये अलाउड नहीं है, तक, ठीक है। तो आप जो कहानी कहना चाहते हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से कहेंगे। फिर कहेंगे कि अच्छा लड़ाई कैसे की, इसको अधिकार मिल गया, ये कौन है, ये इसको जो अधिकार मिला वो लड़की है। फिर वो कहती है कि मैं लड़ाई कैसे लड़ी, मैं यहाँ गई, फलाने गई, यहाँ पे वो डाला, यहाँ पे धरना दिया, यहाँ पे लड़ाई की, उसने कह दिया कि नहीं तुमको कुछ नहीं हो सकता और रोने लगती है। फिर वो कहती है कि अब आज मुझे अधिकार मिल गया लास्ट में, और ये लड़ाई मैंने इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि मुझे जीतना था, मैं लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि मुझे जिंदा रहना था। डायलॉग्स, सी डायलॉग्स तब आता है जब कहानी हो, ठीक है। कहानी ये था कि वो 5 साल लड़ी और वो 18 साल की लड़की इसलिए लड़की है क्योंकि वो उसको बताना था, पर उसको सब कहते थे कि हार जाओगे, तो उसमें डायलॉग बोलती है वो आके कि मैं लड़ी इसलिए नहीं, क्योंकि हर आदमी की जिंदगी में लड़ाई, आपको भी डायलॉग बोल के अच्छा लगता है यार, ठीक है। आपकी बीवी, आपकी भाई, आपका बहन, कोई कुछ बोले तो आपको भी लगता है ना डायलॉग बोल दूं, तो उस डायलॉग में उसको बताती है कि मैं लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि मुझे जीतना था, मैं लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि मुझे बताना था कि मैं भी जिंदा हूं, इस देश में सबको अधिकार चाहिए, ठीक है। फिर वो अंत में ये कहती है कि अब मैं नौकरी पा सकती। So any stories, see, we'll need some more time to explain you all this. I'll show you a few documentaries, then you'll understand what to be done and what not to be done. चलिए अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ कामाख्या सर आपका कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स को उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया, और एक पूरी प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की आपने बहुत अच्छे अपने अनुभवों के साथ में हमसे साझा करी। मैं इस प्रोग्राम के फॉर्मल जो है इसको औपचारिक इसका मैं समापन करूं उसके पहले अग्रवाल सर अगर कुछ कहना चाहें हों यहाँ पर, हमारे जो AICTE एक्टिविटीज़ के डायरेक्टर हैं अग्रवाल सर, यदि आप कुछ कहना चाहें। शायद अग्रवाल सर डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत आभारी हूँ कि आप लोग हमारे साथ में जुड़े, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और यूनिवर्सिटी आगे भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ करती रहेगी। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हम एक्टिविटी वगैरह करते रहेंगे, आप लोग का आगे भी स्वागत है। अब मैं हमारे विश्वविद्यालय के जो हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं रजनीश रावसिया जी, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ पर एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स जो है वो करें। इसके साथ ही फिर हम प्रोग्राम को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा, सर का लेक्चर रहा। काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए वो सुनने को और समझने को मिली। सर जो आपने 2-3 चीजें बताई कि आपका टॉपिक सिलेक्शन और किस तरह से रिसर्च इम्पोर्टेंट होती है, जैसे आपने 35A के लिए करी, तो ये हम बताते हैं बच्चों को कि रिसर्च सबसे पहले करो। और वो जब किसी बड़े डायरेक्टर के मुंह से सुनते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स, तो उनको लगता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम मैं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति KG सुरेश सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उनने हमें मार्गदर्शन दिया, इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को करने का मौका दिया।
और साथ ही साथ सर ने मैक्सिमम फैकल्टीज को प्रोवाइड भी करवाया, जो बड़े बड़े फैकल्टी जो हम लोगों से अछूते थे, दूर थे, जैसे राहुल रवेल सर हैं, कामाख्या सिंह सर हैं, सर ने सीधे संपर्क करा है और सर ने बोला है कि हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फिल्म का है, आप आएंगे तो उसमें जो है एफडीपी में 4 चांद लग जाएंगे। तो सर ने के मैं इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ सर का, कामाख्या नारायण सर का मैं आभारी हूँ कि उन्हें व्यस्ततम समय में से हमें यहाँ समय दिया और हमारे पार्टिसिपेंट्स को फिल्म डायरेक्शन के बारे में और ग्राउंड टू लेवल फिल्म के बारे में बताया। इसके लिए सर आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ रीजनल डायरेक्टर AICTE के, कि सर यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहे, उनने हमें सुना और प्रोग्राम्स को देखा। आभारी हूँ मैं, खास तौर पे आभारी हूँ पवित्र सर का, क्योंकि वो पूरी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आइडिया, बेसिक आइडिया उनका था, पूरी मेहनत उनकी थी। उनने पूरे शेड्यूल तैयार करवाए, हर एक पार्ट पर टॉपिक से लेकर एंडिंग तक जो है सहयोग करा, और क्या स्मूथनेस के साथ में जो प्रोग्राम चला है, इसके लिए सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी पूरी कोऑर्डिनेटिंग टीम, जिसमें जया मैम, अनीता मैम, शलभ सर और सभी कोऑर्डिनेटर्स हैं, भानु सर, अभिषेक सर, अंकिता मैम, विमलेश सर, जो छूट रहे हैं वो सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है। आप लोगों का सबका बहुत बहुत आभार। विश्वविद्यालय की सोशल मीडिया टीम इस कार्यक्रम के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रही है, उन्होंने प्रमोशन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीट्स पे है, समाचार में जो कवरेज हमारे पास में न्यूज़पेपर में आई, बहुत ही अच्छी कवरेज आई है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। खास तौर पे मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे रिसोर्स पर्संस का, जिन्होंने इतना अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड करा है, वैरायटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करा है, इसलिए सर आपका आभार। और अंततः मैं सभी HODs का और खास तौर पर हमारे पार्टिसिपेंट्स का, कि उनने 5 दिन तक फुल टाइम सुनना और जो है हमारी सारी एक्टिविटीज, असाइनमेंट्स को पूरा करा, एग्जाम दी और हमारी सारी बातें मानी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो डेकोरम होना चाहिए किसी भी FDP का लाइव प्रोग्राम का, वो डेकोरम मेंटेन करके रखा, समय आने पर ही क्वेश्चन रेज करे। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद।